Okay, hello everyone. We will start in few minutes. Hello everyone. I'm audible to you all. Okay, shall we start? Good evening everyone. I'm Harshita Arora and I will be your host for today's session. It gives me pleasure to welcome you all to the online web development project building workshop for beginners organized by the Folk and Flow. This session is specially designed for the beginners and aspiring developers who want clear direction in starting their web development journey. Today, you will gain insights into what web development truly is, how to build a structured learning roadmap, and how to create a real-world projects with confidence. And we will also have an interactive Q&A session at the end. And all the participants will receive a certificate of attendance. Now, it's my privilege to introduce our speaker for the day, Mr. Alok Jha, Associate Software Engineer at Javron Solution, who bring over 3 years of hands-on experience in building production-ready web application. I'm confident that today's session will be extremely valuable for all of you. So without any further delay, I invite Mr. Alok Jha to take over the session.
Hi everyone, good evening. Thanks Arshita for introducing me. Yeah, hello guys. कैसे हो सारे? All good. Can we have a thumbs up? Yeah, nice. Okay. So as Harshita gave a brief introduction about me, so I'm Alok, a software engineer working at Java Solutions Mohali. I'm also a student in CGC Mohali, but also working for 3 years remotely for a company, and I have also worked on some startups things. So this is going to be an interesting session for you guys, as I want to keep this beginner friendly and want to provide you the hands-on practice that will improve your knowledge about the understanding of basics of web development. Like जैसे अभी आपने देखा है कि काफी सारे एआई टूल्स आ गए हैं मार्केट में, वर्सल का V0 हो गया, क्लाउड हो गया, चैट जीपीटी एंड गिटहब का कोपायलट, सब ये सब टूल्स हो गए। तो जैसे आपने भी साइट सब बनाई होंगी, बट काफी बच्चों का ये रहता है कि उन्हें बेसिक ही क्लियर नहीं होता हाउ द थिंग्स वर्क, इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है, वेबसाइट एक्चुअली वर्क कैसे करती है। सो इन टुडे सेशन आई विल वॉक यू थ्रू ऑल दिस थिंग्स, हाउ द इंटरनेट वर्क, हाउ साइट्स वर्क, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एंड वेबसाइट पूरी एक जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। आफ्टर दिस वी विल सेट अप सम इन्वायरमेंट एंड डू हैंड्स ऑन कोडिंग, and at last we will deploy your first project on webs on like internet that you can access from anywhere with your subdomain. So are you excited guys? Okay, so let me share the screen and start the today's session. Yeah. So let's start. Hope my screen is visible. Yeah, please ignore the background noise. Yeah. So today's workshop goal is understand the how internet and website works. Then we will set up the development environment, then do the hands-on coding on the HTML and CSS. We'll create our first portfolio and deploy it. We will cover only the first 4 points in the today's workshop as we have short of time. So let's begin without wasting any further ado. Okay. So please ignore some background noise. Yeah. So on the foundation layer, we have the HTML, CSS, and JavaScript. So guys, all the website that you see in the world made of all these things only that render on your browser. जो भी आप website देखते हो like Google, Amazon, Instagram, सारी की सारी website HTML, CSS, JS से बनी है. Yeah. Give me 2 minutes. Yeah, I guess sound is fixed now. Okay. So जितने भी हमारी वेबसाइट बनती हैं सब में HTML, CSS, JS यूज है. तो these are the like you called the ABCD or the foundation of any website that we're building. HTML is for the structure, जैसे बिल्डिंग का कोई स्ट्रक्चर होता है, पिलर्स होते हैं. CSS is for the stylings, ये सब तो पता ही है. JS for the interactivity, आपने काफी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे. उसके बाद हमारे पास आता है गिटहब. ये वर्जन कंट्रोल होते हैं. लाइक आपने जैसे गेम्स खेली हैं तो उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं. तो लाइक आप एक पर्टिकुलर गोल अचीव कर लेते हो तो आगे जाके अगर आप लूज कर जाते हो या डिफीट हो जाते हो तो आप उस चेक पॉइंट से स्टार्ट करते हो. सो सिमिलरली इन सम प्रोजेक्ट जब हम कोई बिल्ड कर रहे होते हैं तो हम चेक पॉइंट्स क्रिएट करते हैं. तो जब हम अगर फ्यूचर में कुछ कोडिंग गलती हो जाती है तो हम वहां से रीस्टार्ट कर सकते हैं. इट्स लाइक अनडू. बट अनडू जो कंट्रोल जेड वाला होता है वो मतलब लिमिटेड टाइम तक होता है. शट ऑफ के बाद, शट डाउन के बाद वो काम नहीं करता. बट गिटहब में हम सारे हिस्ट्री स्टोर कर सकते हैं. Then we have the VS Code. VS Code आप सबने I guess सबने यूज किया ही होगा as you are from first and second year, so you know about it. It's IDE जिसमें अपने को सारा कोड हाईलाइटिंग ऑटो कंप्लीशन से मिलता है. ये था अपना फाउंडेशन लेयर जो अपने पास आते हैं. उसके बाद इनके वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं. वी कैन बिल्ड अवर पर्सनल पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेजेस, बेसिक कैलकुलेटर, फॉर्म वैलिडेशन. सो इसी के अंदर जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे then we will cover HTML, CSS, JavaScript on the basic and then build some sample projects. उसके बाद जो एडवांस चीजें आजकल इंडस्ट्री में यूज होती है लाइक एडवांस जेएस कंसेप्ट, ES6 जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर जो लेटेस्ट फीचर्स हैं. उसके बाद डोम मैनिपुलेशन, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम जो HTML, CSS को मैनिपुलेट करते हैं. फैच API जो हम डाटा फैच करते हैं इंटरनेट से. कोई भी वेबसाइट जो डायनेमिक होती है उसमें कंटेंट चेंज होता रहता है तो सर्वर से डाटा फैच होता है. तो फैच API का यूज करते हैं हम HTML में.
देन वी हैव रिस्पॉन्सिव, जो वेबसाइट जैसे डेस्कटॉप पे वो अलग तरीके से दिखती है, फोन में वो हैमबर्गर आ जाता है, वो 3 लाइंस वाला, तो वो कैसे बनाते हैं, कार्ड्स को अलग अलग तरह से कैसे रेंडर करते हैं। देन वी हैव फ्रेमवर्क्स। आजकल आपने रिएक्ट का काफी नाम सुना, आई गेस सबने सुना ही होगा, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर। तो सबसे मोस्ट रिएक्ट है। ये फ्रेमवर्क का मतलब HTML CSS JS के साथ काम करना बहुत ही इजी बना देता है। वी विल स्टडी व्हाट इज रिएक्ट एंड हाउ इट वर्क्स। देन उसके बाद हमारे पास बैकएंड में एक तो हो गया फ्रंट एंड पार्ट जो यूजर को दिखता है, बैकएंड में जहाँ पे डाटा हमारा स्टोर होता है, जहाँ पे एक्चुअल लॉजिक लिखा होता है। बैकएंड आप कह सकते हो लाइक किचन, जहाँ पे एक्चुअल थिंग बनती है, यूजर को बना बनाया थिंग मिलता है। बैकएंड में एक्चुअल जो हार्डवर्क है वो होता है। तो बैकएंड में हम अगर जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट्स, अगर हमने जावास्क्रिप्ट सीख रखी है तो हम Node.js का यूज करके बैकएंड बना सकते हैं, नहीं तो जावा में भी बनता है, पाइथन में बनता है। बट अगर जो जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से स्टार्ट करता है तो बिगिनर के लिए रिकमेंड होता है कि Node.js सीख ले, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही उसमें यूज होता है एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमें और कोई लैंग्वेज सीखने की नीड नहीं पड़ती। एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी कह सकते हैं, फ्रेमवर्क कह सकते हैं, जो वेब सर्वर बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद वी हैव डाटाबेसेस, MongoDB एंड MySQL जो यूज होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। फिर ऑथेंटिकेशन पार्ट एंड द होस्टिंग पार्ट है, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट और सर्वर को होस्ट करते हैं। ये कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, रेंडर, वर्सन, नेटवर्क, आपने सबका नाम सुना होगा। सो उसके बाद फुल स्टैक आ जाता है डेवलपर, जो दोनों काम आते हैं और जो एडवांस प्रोजेक्ट है। सो लेट्स मूव फर्दर। ये था अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीजें होती हैं अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट में। या so let me ask you a question, guys. So do you know how internet works? Anyone from you want to answer? कोई broad idea कैसे इंटरनेट वर्क करता है? Okay, let me tell. मेरी साउंड क्लियर आ रही है ना? कोई एक बार बताएगा मेरे को गूगल मीट शो नहीं हो रहा। Yes. Yes. Yeah. Okay. So how internet works? सो जितनी भी अपनी इंटरनेट पे कोई भी रिक्वेस्ट जो भी हम यूज करते हैं, सब में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। तो कभी भी हमें लाइक हम सपोज आप सब इंस्टाग्राम चलाते होंगे, सो इंस्टाग्राम में जो वीडियो या रील आपको शो होती है वो कैसे शो होती है? तो वो उनके सर्वर्स पे पड़ी है। जो इंस्टाग्राम का सर्वर है US में है या अलग अलग कंट्रीज में है, सपोज US में उनका सर्वर है तो वहाँ पे उनकी वीडियो पड़ी है। सो आपके फोन में वो कैसे डिस्प्ले होती है? तो सबसे पहले तो आपको सर्वर का एड्रेस चाहिए जहाँ से वो वीडियो आती है। यू नीड देयर एड्रेस। इसको एक लाइक पोस्टल सर्विस कह सकते हो, जैसे पोस्ट सर्विस होती है तो आपको कहीं पे पोस्ट भेजनी है तो उसके लिए आपको उसका एड्रेस चाहिए। तो हर एक जो डिवाइस है ना इंटरनेट पे, सबके पास ना एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपको नेशनली आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक एड्रेस है, तो वैसे ही हर एक डिवाइस का अपने मोबाइल, लैपटॉप सबका एक IP एड्रेस होता है। तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए हम एक्चुअली हमें जाना कहाँ पे है। उसके बाद एक वे होता है जहाँ से हम जाते हैं, जहाँ से रिक्वेस्ट जाती है और आती है। द इंटरनेट वर्क सिमिलरली। तो एक्चुअली होता क्या है, सो व्हेन यू टाइप www.google.com इन योर ब्राउजर, आप ट्राई भी कर सकते हो। तो उसके बाद क्या होता है, जो आपकी ISP है, ISP मीन लाइक योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक एयरटेल, जियो, जो आपका वाईफाई से लगे, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट वहां पे जाती है www.google.com पास के। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट जाती है DNS सर्वर पे। बट ये DNS सर्वर स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इट्स लाइक अ फोन बुक। जैसे आपका फोन कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो उसमें आप सबका नाम सेव करके रखते हो, आप नंबर नहीं याद करके रखते हैं। थिंक IP एड्रेस इज लाइक अ नंबर, जो काफी जिब्रिश सा होता है, काफी बड़ा सा होता है। सो आप इसको याद नहीं रख सकते, तो हम एक ह्यूमनाइज नेम देते हैं, IP को असाइन करते हैं। तो DNS सर्वर मैनेज करता है कि किस नाम को कौन सी IP असाइन की गई है। तो एक फोन बुक की तरह होता है ये। तो सबसे पहले आप ISP के पास रिक्वेस्ट जाते हैं, ISP DNS सर्वर को कॉल करता है और वहां से हमारे पास IP आ जाती है फिर लैपटॉप पे बैक। सो एक बार हमारे पास IP आ गई, सो यही जो डोमेन बता रहा था मैं, डोमेन। तो अलग अलग IPs अलग अलग पे पॉइंट पर, गूगल की IP ये है, ट्विटर की ये है, अलग अलग वेबसाइट्स की IP DNS सर्वर मैनेज करते हैं। इसी के पास सारा रिकॉर्ड होता है कौन सी डोमेन पे जो रिक्वेस्ट है उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। सो फिर अपने पास जब एक बार IP आ गई, सो हमारे ISP के सेल टावर्स पे फाइबर ऑप्टिक्स जो सी में होती है, आपने सुना होगा कि समुद्र में जो तारे बिछी होती है फाइबर ऑप्टिक्स की, फिर वहां से जाके देन उस कंट्री के, सपोज अगर हम US लेते हैं, सो US के जो सेल टावर्स है वहां पे जाके देन उनके डाटा सेंटर्स में जाती है। सो ये एक फ्लो जाता है, वहां पे रिक्वेस्ट जाती है, फिर जो डाटा आता है वो बैक सेम इसी वे में आता है। सो दिस इज द टिपिकल वे द इंटरनेट वर्क्स। तो यहाँ पे आई गेस किसी का कोई क्वेरी होगी कि देन चार्ज क्यों करते हैं, यहाँ पे तो कुछ पोस्टिंग लग ही नहीं रहा, तो वाई डाटा इज लिमिटेड, यहाँ पे तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो अनलिमिटेड क्यों नहीं प्रोवाइड करता है या पैसा क्यों चार्ज करता है? सो दो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेंटेन करते हैं, ये टावर्स ये सब, उसका चार्ज करते हैं, जो जियो वाईफाई वाले चार्ज करते हैं। तो उसमें आपको लगेगा कि फिर फ्री क्यों नहीं दे देते, एक बार तो सेटअप हो गया।
तो उसमें ये थिंग होता है कि अगर सबको फ्री दे देंगे तो यूजर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए लिमिट करके रखते हैं कि आप इतना ही यूजेस कर सकते हैं हमारी सर्विस का। सो ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, बट यू शुड नो अबाउट इट। ओके, नाउ वी हैव द आईपी ऑफ द सर्वर। तो अब मेरे पास गूगल के सर्वर की आईपी आ गई। नाउ आई कैन कॉन्टेक्ट द सर्वर। सर्वर को मैंने बोलना है कि मेरे को google.com दो। तो सर्वर इन रिटर्न मेरे को 3 फाइल सेंड करता है, HTML, CSS एंड JS। सो इसी 3 फाइल्स को मिलाकर जो मेरा कंटेंट दिखता है वेबसाइट पे वो सारा रेंडर होता है। सो थिंक HTML लाइक एज अ कार स्केलेटन। सिर्फ बॉडी है, क्या क्या वेबसाइट पे कंटेंट है, जो टेक्स्ट आ रहा है वो सब, सेक्शन डिवाइडर वो सब HTML का काम होता है, जो भी कंटेंट दिख रहा है एक्चुअल में। एंड देन द CSS पार्ट इज द डेकोरेशन पार्ट, जो भी हम शैडोज, कलर्स, कर्व्स वो सब डिजाइन करते हैं, वो CSS का पार्ट होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव द JS thing, पूरा लॉजिक, द इंजन, द इंटरनल वर्क्स, like on the start button what will be happen, on the key rotate what will be happen, on the brake press, on the accelerate press, क्या क्या things background में run करेंगे, वो सारा JS का part होता है। So JS provide the logic thing to the website. Yeah. Now let we talk about the front end versus back end part. दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सो फ्रंट एंड जो आपका डिवाइस है, जो आपका ब्राउजर है, वहाँ पे जो रेंडर होता है लाइक HTML से JS, वो फ्रंट एंड में आ जाता है। हम इसे फ्रंट एंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जो भी वेबसाइट पे फाइल्स आ रही है ये आपके डिवाइस में रन हो रही है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्रंट एंड। एंड द बैक एंड, ये जो चीजें हैं नोड जैसे एक्सप्रेस, ये आपकी मशीन पे रन नहीं हो रही, ये रन हो रही है रिमोट, जो गूगल, Amazon या इंस्टाग्राम का सर्वर है वहां पे थिंग्स रन हो रही है। तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना देख सकते वहां पे क्या पड़ा है। So that's why it's called the backend. We can't see there. So that's the basic difference of the front end and backend. Backend is not only just the web server, मेल सर्वर भी कह सकते हैं आप इसको, और भी तरह के डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स होते हैं, वो सब थिंग्स इंक्लूड होते हैं इसमें। या so front end like ordering food on the table. Then we have the API. API stands for application programming interface. जिस मैकेनिज्म से फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता है उसको API कहते हैं। तो वेटर की तरह आप इसको ले सकते हो कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो बैकएंड के पास लेके जाता है, देन जो रेडी मटेरियल है वो आपके पास लेके आता है। सो हम एक एक्टिविटी करते हैं। सो एक डेव टूल्स का एक्टिविटी करते हैं। सो सपोज हम एक वेब google.com खोल लेते हैं। सो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जा सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको सारा सोर्स कोड मिल जाएगा, जो भी HTML है। मैंने बताया ना कि गूगल के सर्वर से हमारे पास सारा HTML CSS JS आता है, तो यू कैन चेक हियर आल्सो। सोर्स में जाके आपको ये JS की फाइल दिखेंगी, यू विल सी फाइल्स आल्सो हियर। सो आई कैन कस्टमाइज दिस फाइल्स। सो एलिमेंट में जाके मैं यहाँ पे कुछ भी कंटेंट चेंज कर सकता हूँ इस फाइल में। सो इफ आई वांट टू चेंज द कंटेंट ऑफ हियर, सो आई कैन राइट वेयर इट इज। सो सपोज ये चेंज करते हैं, ऊपर जो लेबल है। सो अबाउट की जगह मैं यहाँ पे XYZ कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँ तो ये चेंज हो गया। बट क्या ये हर जगह चेंज हो गया? इज इट? नो। ये जो मेरे पास कॉपी आई, जो गूगल के सर्विस है, जो HTML CSS JS की कॉपी आई, उसी के HTML में चेंज हुआ है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास फ्रेश कॉपी आएगी, एंड दोबारा जो अबाउट था वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि HTML CSS जो JS है वो हमारे डिवाइस पे आकर रेंडर हो रही है, एंड वी हैव फुल कंट्रोल ऑफ इट। तो इसलिए हम जो भी सेंसिटिव लॉजिक या डाटा है वो हम फ्रंट एंड पे कभी भी नहीं शो करते। जो भी कीज हैं, जो इनक्रिप्टेड कीज या सीक्रेट कीज हैं, वो हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं, वो सारा बैक एंड पे होता है। फ्रंट एंड ओनली गेट द रेंडरिंग पार्ट, जो इतना सिक्योरिटी इशू नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि जो भी फ्रंट एंड पे चीजें दिख रही हैं, जो भी यहाँ पे यूजर को दिख रहा है, वो सारा कंट्रोल कर सकता है, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। सो ये थोड़ा सिक्योरिटी चेक होता है, दैट यू गाइस शुड नो। ओके, let's move further. Okay, so let me know guys, have all you have VS Code setup in your environment PCs? VS Code setup है क्या सबका? वन हैंड्स अप कर दो जिसका सेटअप है एक बार। एक, दो, तीन, चार, पांच। सो शुड आई टेल हाउ टू सेटअप VS Code? जिनका सेटअप नहीं है, अगर किसी को जानना है तो थम्स अप लाइक का इमोजी सेंड कर दो, तो आई विल टेल यू अबाउट दैट। नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई गेस सबका सेटअप है।
So let's move directly to the initialization part of the project. So yeah, so यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फ्लो फॉर्क एंड फ्लो नाम से। या इसको मैं VS कोड में खोल सकता हूँ, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर ऑप्शन आ रहा है यहाँ से भी, नहीं तो VS कोड में जाके भी आप खोल सकते हैं इसको। सो here you can like let me open from the VS कोड, अगर किसी का यहाँ पर राइट क्लिक इनेबल नहीं है तो। अगर किसी का VS कोड इंस्टॉल नहीं तो काफी सिंपल प्रोसेस है, यू कैन जस्ट गूगल द VS कोड फॉर विंडोज, अगर आपका विंडोज नहीं था एप्पल, सो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एंड विद इन फ्यू क्लिक्स आप इंस्टॉल कर सकते जैसे वो बाकी सारा प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। ओके, ऑन द डेस्कटॉप वी हैव दिस फोल्डर। सो सबसे पहले जो फाइल हमारी क्रिएट होगी यहाँ पे होगी index.html। जब भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, सो जितने भी आपको मेन ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, सबसे पहले फाइल यही बनती है इंडेक्स। तो जो भी आप सबसे पहले वेबसाइट विजिट करते हो ना, जो फर्स्ट फाइल रेंडर होती है वो index.html रेंडर होती है, और यहीं से आप बाकी सारे पेजेस पे नेविगेट करते हो। ये रूट होता है, आप इसको जैसे स्लैश और कुछ भी स्पेसिफाई करते, सो इंडेक्स पेज रेंडर होता है ना। मेरे को एक बॉयलर प्लेट चाहिए। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, जो मेरे को हर पेज में डालना ही होता है, ये कॉमन रहता है हर HTML के कोड के लिए। सो ये कैसे आता है, आप शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओगे, 1 दबाओगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, देन एंटर करोगे तो मेरे पास ये बॉयलर प्लेट कोड आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली ये कोड है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे ना डॉक टाइप HTML कुछ ऐसा लिखा हुआ है। सो ये स्पेसिफाई कर रहा है HTML का वर्जन, डॉक टाइप HTML मींस HTML वर्जन 5। उसके बाद यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। इसमें ना एक्चुअली पार्ट्स होते हैं, तो HTML जो टैग होता है सबसे रूट टैग होता है, और ये एट्रीब्यूट होता है। HTML टैग के अंदर मैंने एट्रीब्यूट पास किया लैंग मेरी इंग्लिश, या पास करो ना पास करो डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहता है। उसके अंदर HTML के अंदर अपने पास 2 टैग होते हैं, एक होता है हेड एंड देन होता है अपना बॉडी। हेड के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो हम यूजर की स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कराते हैं, लाइक मेटा टैग्स, कुछ लिंकिंग हो गया, कुछ स्क्रिप्ट्स लिंक करनी है, ये सारा यूजर को नहीं दिखता बट नेसेसरी होता है अपने कोई भी वेबसाइट की फंक्शनिंग के लिए। और यहाँ पे फिर हेड टैग में आता है डॉक्यूमेंट टाइटल। टाइटल में हम स्पेसिफाई करते हैं वो थिंग जो हमें टैब बार में दिखता है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्क एंड फ्लो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ सर्वर को, सो आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो लाइव सर्वर नाम का। ये आप इंस्टॉल कर लेना एंड देन यू विल गेट ऑप्शन हियर गो लाइव का। सो यहाँ से जैसे ही आप गो लाइव पे क्लिक करोगे देन आपका पेज खुल गया। ये अभी पूरा ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे यू कैन सी वी हैव अ फॉर्क एंड फ्लो। ये कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल के अंदर स्पेसिफाई किया फॉर्क एंड फ्लो। यहाँ पे अगर मैं कुछ और स्पेसिफाई करूंगा सो वो मेरा आ जाएगा। सो दैट्स द मेन पर्पस ऑफ द टाइटल। नाउ इनसाइड द बॉडी लेट्स रेंडर समथिंग। So what is the first thing that we display in any programming language we use? Anyone जो बताना चाहता है क्या प्रिंट करते हैं हम सबसे पहले? H1 H2 tag maybe. Yeah, H1 H2. Nice. Anyone else? What is the first tag that we print? C++, Java, कुछ उसमें क्या प्रिंट करते हैं सबसे पहले हम कंसोल में? Okay, let me know. So सबसे पहले जो हमारा Hello world. या नाइस। सो जो भी हम सबसे पहले प्रिंट करते हैं लाइक नेसेसरी नहीं है, बस कन्वेंशन है कि जो भी हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं वो हेलो वर्ल्ड होती है। सो मैं हेलो वर्ल्ड नहीं लिखता, वेलकम टू फॉर्क एंड फ्लो। मैं गिटहब कोपायलट को जरा ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट 30 मिनट्स। तो या H1 के अंदर H1 इज अ टैग। H1 स्टैंड्स फॉर द हेडिंग 1, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, सबसे प्योरिटी वाली हेडिंग जो भी पेज के अंदर होगी उसको हम H1 कहते हैं। वी विल कम टू इट व्हाट इज हेडिंग्स। सो यहाँ पे मेरा रेंडर हो गया। सो नाउ लेट्स मूव सम थ्योरी पार्ट। उसके बाद हम यहाँ पे कोड करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं HTML में क्या क्या थिंग्स होती हैं, किसको क्या कहा जाता है,
and then we'll back to the coding part again. Okay, so what is HTML? HTML stand for Hypertext Markup Language. So it is a standard markup language. Markup language काफी तरह की होती है. HTML standard markup language for creating websites. ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंड इसमें काफी सारे टाइप्स के एलिमेंट होते हैं. जैसे अभी आपने देखा HTML एलिमेंट, फिर उसके अंदर हेड था, फिर बॉडी था, मेटा एलिमेंट था, टाइटल था. तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए. एलिमेंट्स अपना जो डिस्प्ले करते हैं कंटेंट. उसके बाद जैसे मैंने आपको बेसिक बताया यहाँ पे क्या क्या जो बॉयलर प्लेट अभी हमने देखी थी उसमें क्या क्या यूज है, एक एक वर्ड का क्या फंक्शन है. तो डॉक टाइप हमें बताता है कौन सा वर्जन है HTML का. HTML रूट एलिमेंट, हेड कंटेन द मेटा इंफॉर्मेशन, टाइटल स्पेसिफाई द जो टाइटल में डिस्प्ले होता है ब्राउजर के टाइटल बार में. बॉडी के अंदर वो कंटेंट आता है जो हम यूजर को दिखाते हैं. जैसे हमने बॉडी के अंदर अभी हमने लिखा वेलकम टू फ्लो एंड बाइट, या आप अगर कुछ और लिखोगे तो जो यूजर को दिखेगा वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं. अगर आप हेड के अंदर लिखोगे तो यूजर को नहीं दिखेगा वो. सो वी हैव टू राइट इन द बॉडी थिंग. उसके बाद आता है H1, डिफाइन द लार्ज हेडिंग. P पैराग्राफ अगर हमें कोई वेबसाइट में स्पेसिफाई करना है देन वी हैव द पैराग्राफ टैग. सो एक HTML एलिमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सो HTML एलिमेंट डिफाइंड बाय ओपनिंग टैग, उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है, एंड देन क्लोजिंग टैग. तो लाइक पैराग्राफ टैग का एग्जांपल लेते हैं. तो वी विल हैव ओपनिंग टैग, ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिखते हैं. उसके बाद जो कंटेंट हमने डिस्प्ले करना है पैराग्राफ के अंदर, जो भी कंटेंट हमारा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो देखनी है वो यहाँ पे हम लिखें, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. एंड वी हैव द क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग स्लैश P एंड एंगुलर ब्रैकेट. सो इन पूरे को मिला के ओपनिंग कंटेंट एंड क्लोजिंग को मिला के अपना एक HTML एलिमेंट बनता है. यहाँ पे एक नोट है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो HTML में जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, लाइक BR, HR. These are empty elements, do not have the ending tags. Okay, T structure एक बार हम जैसे विजुअलाइज करना है तो कैसे वर्क करता है. तो HTML के अंदर अपने पास होता है हेड, देन वी हैव द बॉडी. हेड के अंदर हम टाइटल स्पेसिफाई कर सकते हैं, मेटा डाटा स्पेसिफाई कर सकते हैं. बॉडी के अंदर हम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने यूजर को दिखानी है, जैसे हमने अभी H1 लिखा. हम पैराग्राफ स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई लिंक स्पेसिफाई करनी है, लाइक हमें सोशल मीडिया पे लेके जाना है या और कोई पेज का लिंक स्पेसिफाई करना है, वो सब थिंग्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द हेडिंग पार्ट. तो सबसे पहले जो हम एलिमेंट स्टडी करेंगे HTML में, दैट विल बी अवर हेडिंग. सो हेडिंग्स अपने पास लाइक 6 टाइप्स की हेडिंग होती है. H1 is the biggest heading and H6 is the smallest heading. So ये जो SEO पार्ट में बहुत काम आता है. तो हर एक पेज के जैसे हम नोट्स भी बनाते हैं, कोई भी बुक होती है तो उसमें सबसे पहले मेन हेडिंग होती है, फिर उसके अंदर जो सेक्शन होते हैं उनकी छोटी हेडिंग होती है, देन उनके अंदर छोटी. तो वैसे ही एक पेज के स्ट्रक्चर में भी सिमिलर ऐसा होता है कि सबसे पहले बिगेस्ट हेडिंग, देन स्मॉल. Let me give you an example of this, what I mean from here. So let's go to the Wikipedia page. कोई आर्टिकल ले लेते हैं इनका, अगर करके मेरे को मिले तो. So HTML पे ही ले लेते हैं आर्टिकल. So इस पेज में जो है ये वाला जो रेंडर हुआ है H1 के अंदर रेंडर हुआ है. देन वी हैव लाइक H2. एक पेज के अंदर रिकमेंड होता है कि एक ही H1 हो जो स्पेसिफाई करे कि पेज है किस बारे में, हेडिंग क्या है इस पेज की. Then we will have the smaller, ये I guess H2 या H3 यूज हुआ है. Then उसके अंदर smaller tag, ये कुछ H2 या H3 है, then H4. So ऐसे heading specify होती हैं. तो that's the main purpose of the heading. एक तो visually show करता है कि बड़ा H1 बड़ा होगा, H6 छोटा होगा. And it is also important for the SEO purpose. जो हमारी वेबसाइट रैंक होती है जब हम गूगल में सर्च करते हैं, तो उसके लिए जो हमारी अगर हम प्रॉपर हेडिंग्स के बेसिस पे स्ट्रक्चर करते हैं, सो अवर वेबसाइट विल बी रैंक हायर इन द रैंक. वो थोड़ा एडवांस थिंग है, उसको पे नहीं जाते हैं. ओके, देन वी हैव द पैराग्राफ थिंग. पैराग्राफ में हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमें डिटेल में प्रोवाइड करनी है, सो वो कर सकते हैं. पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन द न्यू लाइन एंड ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड वाइट स्पेस. सो अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर 2 पैराग्राफ स्पेसिफाई कर रहे हैं, सो दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे. ये इसके बाद नहीं स्टार्ट होता है क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है. हम ब्लॉक एंड इन लाइन आगे पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है. Okay, so these are the common HTML elements. H1 to H6 हो गया अपने पास. पैराग्राफ हो गया, लिंक हो गया. अगर अपने को मेरे को अपने YouTube या Instagram का या नंबर का लिंक देना है, यहाँ पे मैं एंकर टैग का यूज करके यूजर क्लिक करेगा तो वो मेरे Instagram सोशल हैंडल्स पे जा सकता है. कोई मेरे को इमेज अटैच करने, देन वी हैव द इमेज एलिमेंट. उसके अंदर हम सोर्स एट्रीब्यूट, अगर ओपनिंग टैग के अंदर हम कुछ भी अगर पास कर रहे हैं ना, लाइक मैंने सोर्स पास किया, ऑल्ट पास किया, तो उसको एट्रीब्यूट कहते हैं. तो ये सोर्स एट्रीब्यूट हो गया. सोर्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं इमेज स्पेसिफाई कर रहा हूँ कौन सा ऐड करना है. ये अल्ट होता है. अभी मैं कोडिंग पे जाऊंगा, देन आई विल टेल व्हाट इज इट. उसके बाद कुछ अगर हमें लिस्ट रेंडर करनी है तो यूएल होता है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम. इसके अंदर कुछ जो आइटम डालनी हमने. देन वी हैव द डिव, स्पैन, लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल ब्रेक. ये सब थिंग्स हैं.
So let's now move to the coding part. तो अब जितने भी हमने टैग्स देखे हैं, लेट्स यूज इट. सो हमने H1 देखा, एक बार H2 भी देख लेते हैं. हेलो, H3, हेलो ही लिखते हैं. H3 एक्चुअली आप कंट्रोल Z से बैक कर सकते हो, एंड जैसे VS कोड में आप H3 लिखोगे देन ये ऑटोमेटिक सजेशन दे देगा, एंड देन अगर आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा प्ले. तो आपको पूरा लिखने की भी नहीं चाहिए. यहाँ पे अगेन आई कैन टाइप हेलो एंड ऑल्ट और शिफ्ट प्लस डाउन एरो करोगे तो कॉपी हो जाता है नीचे नीचे. सो ये शॉर्टकट्स रहते हैं कुछ जो काफी यूजफुल रहते हैं. एंड जैसे मैं इस लाइन से नीचे आ पा रहा हूँ तो मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, सो आई कैन डायरेक्टली, अगर सिर्फ एंटर करोगे तो नीचे आ जाएगा, कंट्रोल एंटर करके हम ऐसे नीचे आ सकते हैं. देन वी हैव द H4 हेलो, H5 हेलो, H6 हेलो. ओके, सो मेरे पास यहाँ पे जो H2 है सबसे बड़ा है एंड H6 is the smallest one from all. Okay, so these are the heading tags. Then we have the paragraph. So paragraph के लिए अगर मैं P लिखूंगा एंड एंटर टाइप करूंगा मेरे पास paragraph टाइप आ जाएगा. So hi guys, welcome to website development workshop. So I can specify as much as I can here. So ये अगर टेक्स्ट रेंडर हो जाएगा यहाँ पे, एंड अगर मैं और कोई पैराग्राफ यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा, सो हेलो गाइस, सो ये नेक्स्ट लाइन में रेंडर होगा इंस्टेड कि यहीं से रेंडर होगा, क्योंकि जो पैराग्राफ है फुल स्पेस ले लेता है लाइन की. चाहे आप एक वर्ड भी यहाँ पे स्पेसिफाई करो, चाहे यहाँ पे मैं एक वर्ड भी स्पेसिफाई करूंगा फिर भी ये फुल स्पेस लेगा. जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में आएगा. सो ये थिंग रहती है. एंड एक और थिंग रहती है, लाइक अगर मैं यहाँ पे स्पेस स्पेसिफाई करता हूँ तो यहाँ पे स्पेस नहीं आता. ये एक थिंग है जो हमें रिमेंबर करके रखनी होती है. अगर मैं पैराग्राफ टैग के अंदर स्पेस स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो वो सिर्फ एक ही स्पेस करता है. अगर मैं बार बार काफी सारे स्पेस डालूंगा तो उसको काउंट नहीं करेगा. तो दैट्स द थिंग अबाउट इट. उसके बाद अभी हमने स्टडी किया इमेज टैग. अगर हमें कुछ इमेज रेंडर करना है तो हमारे पास इमेज होता है. सो इट इज सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, सो सिर्फ ओपनिंग टैग होता है इसमें. सो इसके अंदर मैं सोर्स के अंदर कोई URL स्पेसिफाई कर सकता हूँ, लाइक फ्रॉम द इंटरनेट. अगर यहाँ पे मेरे पास इमेज पड़ी उसका पाथ, तो एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं. सो जिसकी HTML की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं. सो आई हैव दिस इमेज, आई कैन सेव इट. आप राइट क्लिक करके सेव एज इमेज कर सकते हो, एंड हियर आई कैन सेव. इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ HTML.png में. So HTML.png लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास इमेज आ जाएगी. एंड अगर मैं चेक करूँ वेबसाइट पे जाके तो यहाँ पे मेरे पास इमेज शो होने लग गई. एंड सपोज अगर ये इमेज का पाथ गलत होगा, सो अगर मेरे को शो करना है, अगर मेरे को और कुछ शो करना है, सपोज ये इमेज वर्क नहीं कर रही है, मैंने कुछ नाम गलत रखा है, तो उसकी जगह अगर मेरे को कोई टेक्स्ट शो करना है, दिस इज HTML इमेज, तो उसकी जगह ये रेंडर हो जाएगा जो यहाँ पे मैं टेक्स्ट स्पेसिफाई. सपोज मैंने नाम गलत लिख दिया तो उसके लिए यहाँ पे शो करेगा दिस इज HTML इमेज. अगर नहीं लिखूंगा तो सिर्फ ये आइकन आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली यहाँ पे इमेज थी क्या. सो दिस इज गुड प्रैक्टिस कि वी ऑलवेज स्पेसिफाई द अल्टरनेट टेक्स्ट, इसको कहते हैं इमेज के साथ. सो डी हटा देता हूँ मैं ऐसे. या सो नेक्स्ट हमारे पास था लिंक टैग. सो लिंक टैग हमें लाइक किसी और साइट पे लिंक करने काम आता है. सो अगर मैं यहाँ पे गूगल का ही लिंक लेता हूँ, सो https://www.google.com और यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ क्लिक here to go to Google site. So I'll write here and when I will go to my website, तो यहाँ पे मेरे पास ब्लू और अंडरलाइन में आ गया कि क्लिक here to go to Google. तो यहाँ पे जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ वो पॉइंटर में चेंज हो जा रहा है मेरा. सो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को google.com पे रिडायरेक्ट करेगा. सो यहाँ से आप अपनी साइट का भी अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है या और कोई कॉन्टैक्ट लिंक है अब यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो. अगर मेरे को कोई और पेज में लिंक करना वो भी मैं यहाँ से स्पेसिफाई कर सकता हूँ. सपोज मैंने और कोई पेज बनाया second.html और यहाँ पे कुछ लिखा दिस इज सेकंड पेज
वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो अगर पेजेस के बीच में मेरे को लिंक करना है, so I can also link here. So I can link second.html. So click here to go to second page. Yeah. So now I will move to the next page. यहाँ पे थोड़ा URL में नोटिस करना, यहाँ पे मेरे पास URL में second.html आ गया, बट होम पेज के लिए इंडेक्स के लिए मेरे को कुछ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा था। वो ऑटोमेटिकली जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं वो अपने ऑटोमेटिकली इंडेक्स पे देता है। तो हियर इज अ पॉइंट टू नोट। नाउ मूव टू द लिस्ट। अगर हमें कोई लिस्ट रेंडर करनी है लाइक आइटम्स की लिस्ट, so for that we can use the list. There are two types of list. First is the unordered and then we have the ordered list. So unordered में like कुछ आइटम्स होती हैं जिनका कुछ ऑर्डर नहीं होता, ऊपर नीचे कैसे स्पेसिफाई कर दे, मीनिंग उनका सेम ही रहता है, लाइक फ्रूट्स के नेम हो गए। सो यूएल के अंदर हम एल आई के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, एल आई इज अ लिस्ट एलिमेंट, एप्पल, मैंगो, और लाइक फास्ट फूड नेम्स, फ्राइज and something else you can specify here. So यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो फोर्थ में कुछ स्पेसिफाई नहीं, पॉइंट आ गया बट वहाँ पे कुछ कंटेंट शो कर रहा। वैसे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, in this we have the order. So like first I have to complete first task, then second task. So ऐसे मेरे पास नंबर आ जाएगा। एक तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर साइन कर देगा अकॉर्डिंग टू जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है। सो हमारे पास काफी सारी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें लिस्ट रेंडर करनी होती है, कभी हमें अनऑर्डर दिखाना होता है, कभी हमें ऑर्डर दिखाना होता है। सो वी यूज दिस थिंग देयर। उसके बाद काफी टाइम होता है कि हमें कुछ कमेंट लिखना होता है। सो हर एक लैंग्वेज में अपने अपने कमेंट्स होते हैं, जैसे आपने C++ करी होगा तो उसमें भी हम कमेंट राउट डाउन करते हैं, आपको पता है, जो हमें एज ए इन्फॉर्मेशन चाहिए बट हम उसको शो नहीं करना चाहते हैं एक्चुअल वेबसाइट में। सो दिस इज द कमेंट। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो पेज में शो होगा, दिस इज द कमेंट। बट अगर मैं इसको शो नहीं कराना चाहता, सो आई कैन जस्ट कंट्रोल और बैकस्लैश से ये ऐसे ऑटोमेटिक इसको कमेंट कर देगा। एंगुलर ब्रैकेट होता है, समेशन हाइफन हाइफन, उसके अंदर जो भी कमांड है वो आ जाता है। सो नाउ इट विल नॉट शो ऑन द पेज थिंग। ओके, सो दीज आर अवर बेसिक थिंग्स जो हमारे पास होती हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे लाइन ब्रेक आता है। सो लाइन ब्रेक देख लेते हैं एक बार। सो सपोज यहाँ पे वेलकम टू फॉर्क एंड फ्लो करना है मेरे को, अभी जैसे एक लाइन आ रहा है वेलकम टू फोक एंड फ्लो, बट अगर मेरे को वेलकम टू के बाद मेरे को फोक एंड फ्लो का नेक्स्ट लाइन में दिखाना है तो आई कैन राइट हियर BR टैग होता है, इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। सो इट विल ऐड अ ब्रेक, फिर नीचे लाइन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली इसी की तरह एक और टैग होता है हॉरिजॉन्टल रूल HR टैग, जो एक हमने को ऐसी लाइन से प्रोवाइड कर देता है, डिवाइडर सब कह सकते हैं इसको, वी कैन से। ओके, सो उसके बाद हमारे पास होता है डिव टैग, इसको हम डिवाइडर भी कहते हैं, डिवीजन भी कहते हैं। आपने जब आप आगे कोड करोगे या साइट्स बनाओगे, यू विल अलॉट सी दिस टैग डिव। सो जितना भी कंटेंट होता है हम सारे कंटेंट को डिव के अंदर लिखते हैं। एक मतलब सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए हम डिव का यूज करते हैं। लाइक एक सेक्शन का कोड यहाँ पे हो गया, दिस इज अ सेक्शन, इसके अंदर मैं और भी टैग स्पेसिफाई कर सकता हूँ, लाइक एंकर टैग, इमेज टैग, और वैसे ही अलग डिव बना सकता हूँ। तो जब मैं स्टाइलिंग करूंगा तो मैं इसको डिव को अलग से टारगेट करके स्पेसिफाई कर सकता हूँ, इसको अलग से। तो थिंक ऑफ इट लाइक बॉक्स, अलग अलग बॉक्स मैंने स्पेसिफाई कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने कॉलम्स बना के। तो वो थिंग हो गई। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन। ओके, एट्रीब्यूट्स अभी हमने देखे, जैसे अभी हमने लिंक स्पेसिफाई किया था तो उसके अंदर हमने href स्पेसिफाई किया था कि हमें जाना कहाँ पे है। हमने यहाँ पे बताया था वेयर वी वांट टू गो, वी हैव राइट हियर google.com, और किसी पेज की हमने लिंक स्पेसिफाई करी थी। उसके बाद इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है टारगेट। मैं रिकमेंड करूँगा आप खुद ट्राई करो ये टारगेट एक्चुअल में होता क्या है। आप जब खुद कोडिंग करना आप खुद ट्राई करना व्हाट इज टारगेट थिंग। कमेंट हमने कवर कर लिया व्हाट इज अ कमेंट इन HTML। लिंक्स हमने देख ली, वी हैव द एंकर टैग जो अभी हमने पढ़ा, टारगेट एट्रीब्यूट को वेयर टू ओपन द लिंक सेम पेज में करना है, वो अलग पेज में, हिंट आपको मिल गई है। वी हैव कवर द इमेजेस, इमेज इज अ सेल्फ क्लोजिंग, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आ गए अपने पास, सोर्स कहाँ पे इमेज पड़ी, अगर ऑनलाइन पड़ी है तो हम इमेज का सीधा URL दे सकते हैं। सो अगर मेरे को इस वाली इमेज को डायरेक्टली मेरे को बिना डाउनलोड करे अगर डिस्प्ले करना था, मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता
एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली URL स्पेसिफाई कर देता हूँ उसका, फिर भी मेरे पास जो इमेज है वो रेंडर हो जाती है। एंड नाउ यू कैन सी इट इज रनिंग द फुल क्वालिटी फॉर्मेट। अगर मेरे को उसका कंट्रोल करना है साइज, तो यहाँ पे मैं और एट्रीब्यूट पास कर सकता हूँ विथ जिसकी मैं 100 पिक्सल लिख सकता हूँ, तो 100 पिक्सल का हो गया है। सो आई फ्रॉम हियर आई कैन कंट्रोल द साइज ऑफ द थिंग्स। या सो गाइस, कैसा लग रहा है अभी तक? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? ये बता पहले मेरे को। No, sir, it's fine. ठीक है ना स्पीड? अगर वो तो हाँ मैं थोड़ा जी। स्लो कर देता हूँ, अगर ज्यादा लग रहा है आपको तो। ठीक है सर, it's good. ओके, एनीवन एल्स गाइस? 32 मेंबर्स हैं। ओके, नाइस। ओके, सो फर्दर मूव करते हैं। गाइस 2 मिनट देना मेरे को इस। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो हमने लिस्ट भी कवर कर लिया। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट अलाउड ग्रुप पे सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हमने देख ली, ऑर्डर लिस्ट देख ली। इनके अंदर हम li से आइटम्स को ऐड करते हैं। सो नाउ कमिंग टू द ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट। ये काफी अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जब हम एंट्री लेवल के लिए अप्लाई करते हैं। सो काफी आस्क करते हैं ये वाला क्वेश्चन फ्रंट एंड इंटरव्यूज में भी, एंड यू शुड नो अबाउट देम। सो ब्लॉक एलिमेंट, जैसे हमने अभी पैराग्राफ देखा था, वो पूरी लाइन ले लेता है, पूरी विड्थ टेक कर लेता है। सो अगर हम दो ब्लॉक लाइन को एक बाय एक करते हैं तो दोनों अलग अलग लाइन में आते हैं। एग्जाम्पल हो गया अपने पैराग्राफ, div, हेडिंग्स, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर लिस्ट, li, ये सब। एंड इनलाइन होते हैं, अगर आप मल्टीपल स्पेसिफाई करते हो तो सेम लाइन में आते हैं, स्टेज ऑन द सेम लाइन। वो उतनी विड्थ लेते हैं जितना उनके पास कंटेंट है। सो लेट्स टेक एग्जांपल। यहाँ पे जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा था, मैंने 2 पैराग्राफ लिखे तो अलग अलग लाइन में आए थे। बट यहाँ पे मैं अगर स्पैन लिखूं, हाय एंड अगेन स्पैन हेलो, तो ये दोनों सेम लाइन में आएंगे। सो जो फर्स्ट वाला था अपने पास हाय हेलो, एंड ये उसके पैराग्राफ के अंदर है, एंड दिस इज द इन द उसमें है स्पैन के अंदर। एंड यू नोटिस यहाँ पे इमेज भी इसके साथ ही आ गया, ये नई लाइन में नहीं है। तो हमें इससे क्या पता है, जो इमेज टैग है दैट इज आल्सो द इनलाइन ब्लॉक, एंड एंकर टैग भी इसी के साथ आ गया, न्यू लाइन में नहीं आया। सो एंकर टैग इज आल्सो इनलाइन ब्लॉक, बट उसके बाद जो हमने लिस्ट स्टार्ट करी वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो, जबकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस पड़ी थी। सो लिस्ट इज अ ब्लॉक एलिमेंट। सो थोड़े थोड़े कंसेप्ट होते हैं जो आपको बाद में तंग भी कर सकते हैं कि उधर क्यों आ रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा। सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इनलाइन एंड व्हाट इज ब्लॉक। स्पैन, एंकर टैग्स, इमेजेस, लाइन ब्रेक, ऑल दिस थिंग्स आर इनलाइन थिंग्स। ओके, div हमने देख ली, यूज्ड टू एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। जब हमें एलिमेंट्स को ग्रुप करना होता है साथ में, कोई एक सेक्शन है उसको ग्रुप करना है, तो हम div के अंदर उसको लिख देते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फॉर्म थिंग। इट इज थोड़ा सा एडवांस और कॉम्प्लेक्स हो जाता है इनिशियल बिगिनर्स के लिए, बट वेरी यूजफुल थिंग्स। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हर सॉफ्टवेयर में फॉर्म इज अ क्रिटिकल थिंग डाटा कलेक्शन के लिए। लाइक हर वेबसाइट में आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा होगा, जो आपको कॉलेज में फॉर्म्स मिलता है, गूगल फॉर्म, उसमें सारा फॉर्म्स में जो डाटा लेते हैं वो सारा इसका यूज करके बना होता है। सो एक हम खुद का भी फॉर्म क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट द लॉगिन फॉर्म इन द HTML। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या क्या है इसमें। सो फर्स्ट जो भी सारा फॉर्म का कंटेंट है वो फॉर्म के अंदर रहता है। सो फॉर्म इज अ पेरेंट और रूट टैग फॉर क्रिएटिंग एनी फॉर्म, तो हमें फॉर्म के अंदर ही सारा लिखना है। हमारे फॉर्म है, उसके बाद एक्शन है, जब फॉर्म सबमिट होगा तो होगा क्या एक्चुअल में। एंड यहाँ पे मैथड है, मैथड को भी हम स्किप करते हैं। उसके बाद आता है लेबल एंड इनपुट। इनपुट थिंग जहाँ पे यूजर राइट करता है, एंड लेबल
वो इनपुट है किस चीज के लिए, यूजर को हम स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे लिखना क्या एक्चुअल में, ताकि उसको पता रहे। सो देखते हैं इसको। या सो इन द फॉर्म वी हैव एक्शन, एक्शन अभी हम ब्लैंक ही रखते हैं। उसके बाद बस इनपुट आ गया। इनपुट इज आल्सो एचटीएमएल एलिमेंट। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, एक एट्रीब्यूट टाइप होता है इनपुट के अंदर, वहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ ये इनपुट है किस टाइप का। बहुत सारे टाइप्स होते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास कैसे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गए कि कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। सो हियर वी हैव द बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट इनपुट कर सकते हैं, डेट, टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सबसे बेसिक जो होता है डिफॉल्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। तो अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे पेज पे, तो यहाँ पे मेरे को एक इनपुट बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे मैं कुछ राइट कर सकता हूँ, बट मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या राइट करना है, यहाँ पे मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। सो उसके लिए मैं यहाँ प्लेस होल्डर स्पेसिफाई कर सकता हूँ एंड और ईमेल। सो यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है, अगर कुछ यहाँ पे टाइप नहीं हुआ तो उसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा ना। मेरे को थोड़ा सा तो पता चल गया कि यहाँ पे मेरे को ईमेल लिखना है, बट जैसे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा वो गायब हो जाएगा प्लेस होल्डर। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेबल स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो स्टैटिक रहेगा वो कभी गायब नहीं होगा। ये लेबल 4 में बताता हूँ किस लिए होता है, लेबल लाइक ईमेल। तो मेरे पास ईमेल आ गई। सो यहाँ पे रहेगी और स्पेसिफाई करेगी कि ये मेरी जो है लेबल जो इनपुट है वो ईमेल के लिए है। एंड इसके अंदर मैं आईडी भी पास कर सकता हूँ। आईडी अभी मैं सीएसएस में जाऊंगा तब बताऊंगा आईडी का क्या रोल है। बेसिकली यहाँ पे एक इनपुट को मैंने स्पेसिफिक आईडी दे दी, लाइक जैसे आपको रोल नंबर मिलता है, तो वैसे हम इनपुट्स को भी क्लासेस और आईडी दे सकते हैं, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काफी सारे, अगर मेरे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं तो मैं हर एक को अलग अलग यूनिक यूनिक आईडी देके उनको टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ ईमेल, और फॉर में लिख देता हूँ ये जो लेबल है ये ईमेल के लिए है। सब जब मैं यहाँ पे लेबल पे भी क्लिक करूंगा ना, तो ऑटोमेटिक मेरा ये वाला जो इनपुट है वो ट्रिगर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल इनपुट होते हैं, तो सपोज यहाँ पे ऐसे होता और इनको मैं आईडी नहीं देता, आईडी थर्ड वाले को जाती है, तो अगर इस पर क्लिक करने में मेरा थर्ड वाला फोकस में आता, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 में स्पेसिफाई किया ये लेबल है किसके लिए। सो ये यूज होता है इस पर्पस के लिए। उसके बाद मेरे पास और भी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं स्टाइलिंग के। स्टाइलिंग वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। यस, एनीवन हैव एनी डाउट्स? यस कमलजीत। I guess you have any doubt? Okay, no issue. Let's move further. Yeah. So मेरे पास एक इनपुट आ गया, एक और इनपुट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, लेबल पासवर्ड। इसके लिए भी एक इनपुट क्रिएट होगा। इसको मैं टेक्स्ट भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, बट यहाँ पे स्पेशल होता है पासवर्ड टाइप होता है। पासवर्ड टाइप में आप जो भी टाइप करोगे वो आपका हिडन रहेगा, वो डिस्प्ले नहीं होता। जैसे आपने टिपिकल वेबसाइट फॉर्म में देखा, लॉगिन फॉर्म में देखा होगा, पासवर्ड आपको शो नहीं करता बाय डिफॉल्ट। एंटर योर पासवर्ड, आईडी मैंने यहाँ पास कर दी पासवर्ड की। So now when I will go here, I will have the email thing and then I have the password thing. So यहाँ पे जो भी मैं राइट कर रहा हूँ वो डॉट्स में आ रहा हूँ, मेरे को शो नहीं कर रहा एक्चुअली में है क्या। अब मेरे को चाहिए कि ये नीचे आ जाए, मेरे को दूसरी लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे बी आर ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये जो लेबल इनपुट है दिस आर द इनलाइन एलिमेंट्स, तो ये सेम लाइन में आते हैं। सो बी आर का यूज करके मैं इनको नेक्स्ट लाइन में फोर्सफुली पुश कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ले आया इनको। एंड देन जब मैं डिटेल्स एंटर कर लूँ, मेरे को एक बटन चाहिए जिससे मैं सबमिट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं बटन स्पेसिफाई कर सकता हूँ, लॉग इन या सबमिट। सो लॉग इन हो गया, बटन पे क्लिक करूंगा सो मेरा सबमिट हो जाएगा फॉर्म। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ बटन है किस लिए। अगर फॉर्म के अंदर बटन है तो उसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं व्हाट इज इट फॉर। सिंपल बटन है, फॉर्म सबमिट के लिए बटन है, या रीसेट फॉर्म रीसेट के लिए बटन है। सो अगर ये रीसेट टाइप का बटन होगा, तो अगर कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे मैं एंड देन बटन पे क्लिक करूंगा, तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ये रीसेट हो जाएगा, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा यहाँ पे। बट अगर मैं इसको सबमिट करूंगा, सो कुछ भी अगर यहाँ पे लिखूंगा, सो आप देखोगे पेज ऊपर देखो ना, रीलोड ट्रिगर होगा पेज का। सो बहुत ही फास्ट वो रीलोड ट्रिगर हुआ। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि फॉर्म सबमिट पे होगा क्या, सो कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ ऑन सबमिट। ऑन सबमिट यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास कर सकता हूँ, आई गेस ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट आ जाता है। यहाँ पे मेरे को सिंगल बेसिक फॉर्म सबमिटेड, I can write here like that thing,
सो वो मेरे को स्टॉप भी करना पड़ेगा प्रोपोगेशन, एक और थिंग है। सो इवेंट आता है डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सो नहीं, जावास्क्रिप्ट में इसको कवर करते हैं, ज्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास मेथड्स थे, मेथड्स बाद में हमारे पास काम आएंगे जब हम बैकएंड से इंटरेक्ट करेंगे। तो जब हम ये फॉर्म में जो डाटा आई है एक्चुअली हम बैकएंड में सेंड करते हैं, बैकएंड सर्वर्स पे। सो उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं किस मेथड के थ्रू लेके जाना है। पोस्ट इज अ लाइक जनरल वे और सिक्योर वे, जब हम बैकएंड पे कुछ डाटा ट्रांसफर करते हैं। अब मेरे पास ईमेल आईडी आ गई तो मेरे पास बैकएंड सर्वर पे इसको लेके जाना है एंड चेक करना कि यूजर का अकाउंट है भी या नहीं है। सो उसके लिए यूज होता है। So that's the form part. Next, I guess we have the tables thing. Let's see. We have the different types of HTML input type. We have seen the text, password. वैसे email होता है। We want the email validation, idle letter है, .com है, वो सब नहीं है तो automatic validation provide कर देगा। टेलीफोन नंबर, वो सब थिंग्स एंड फाइल कुछ अपलोड करवानी है यूजर से, रेडियो बटन, तो आप खुद चेक कर सकते हो अलग अलग एट्रीब्यूट पास करके। ओके, नाउ वी हैव द HTML टेबल थिंग। सो अगर मेरे को वेबसाइट में कभी टेबल रेंडर करना है, सो आपने देखेंगे वेबसाइट में कई बार टेबल्स रेंडर होते हैं। सो वी यूज HTML टेबल्स फॉर दैट थिंग। ओके, सो टेबल को रेंडर करने सबसे पहले मेरे पास टैग होता है टेबल। सो टेबल के अंदर मेरे पास होते हैं टेबल की हेडिंग, जो मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि मेरे पास कॉलम्स के जो हेडिंग्स उनका नेम क्या है। सो टी हेड होती है एंड टी बॉडी होती है। टी बॉडी के अंदर एक्चुअल कंटेंट आता है एंड टी हेड के अंदर आई स्पेसिफाई हेडिंग। सो अगर ये टेबल के अंदर ना हर एक चीज ना रो में डिवाइड होती है। सो एक जो हम जैसे एक्सेल में रो होती है, सो मेरे को इसमें भी क्रिएट करना है तो मेरे पास टी आर होता है। कोई भी मेरे को डाटा एंटर करनी है तो मेरे को यहाँ पे टी आर क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर मैं टी डी से एंट्री करता हूँ टेबल डाटा सेट, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे पहले मेरे पास टेबल है, देन आई हैव द टेबल हेड, देन आई हैव द टेबल बॉडी। तो फिर एक टेबल रो क्रिएट होती है। टेबल रो मतलब ये पूरी रो, उसके अंदर मैं स्पेसिफाई करता हूँ टी हेड में टी एच, और जैसे बॉडी में तो वहां पे फिर टी डी होता है, टेबल डाटा एचटीएमएल बिगिनर। सो लेट्स ऐड, तो यहाँ पे मैं टी एच लिख सकता हूँ, नेम टी एच, रोल नंबर। ये थोड़ा सा काफी सारी चीजें टेबल में टैग्स रिमेम्बर करने पड़ते हैं कौन से क्या है। सो एक बार आपको पता चल जाए तो आप दोबारा गूगल भी कर सकते हो एक्चुअली होता क्या थिंग कैसे कैसे वर्क करती है। आपको पूरा रिमेम्बर करने की नीड नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये थिंग भी एग्जिस्ट करती है टेबल बनाने के लिए। वी यूज अ टेबल्स थिंग। आप भूल गए हो कभी नाम, टी एच का नाम भूल गया, टी आर का क्या यूज था, तो यू कैन ऑलवेज गूगल द थिंग। हमें कभी रिमेम्बर नहीं करके रखना होता चीजों को। या सो टी हेड मेरा क्रिएट हो गया। सो नाउ आई व्हेन आई गो टू द हियर, तो यहाँ पे मेरे पास नेम आ गया, रोल नंबर आ गया एंड ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया क्योंकि मैंने इसको टी एच के अंदर लिखा है। एंड टी आर टी बॉडी के अंदर भी मेरे को एक रो क्रिएट करनी है एंड उसमें मेरे को टी डी स्पेसिफाई करना है। नेम हो गया मेरा आलोक एंड जो रोल नंबर हो गया कुछ भी आप सैंपल स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर थिंग। सो आई गॉट द रोल नंबर, आई गॉट द नेम। यहाँ पे मैंने 2 टीडी लिखी, एक और टीडी लिखता तो ये बाहर चला क्योंकि मेरे पास जो कॉलम्स हैं वो 2 ही हैं। सो ऑटोमेटिकली उसने 2 के हिसाब से लाइन कर लिया। अगर मैं एक और लिखता तो मेरा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा मिसकॉन्फिगर हो जाता है, बाहर चला जाता है, इसको कोई अपनी हेडिंग मिलती ही नहीं। सो दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द बॉर्डर हियर, लाइक यहाँ पे बॉर्डर थिंग होती है। सो ऑटोमेटिकली बॉर्डर आ जाता है टेबल में, बट नाउ जनरली रिकमेंड नहीं होता, इसलिए रेड कलर में आ गया क्योंकि ये डेप्रिकेटेड थिंग है। एचटीएमएल रिकमेंड नहीं करता कि आप बॉर्डर टेबल के अंदर ऐसे स्पेसिफाई करो, सीएसएस का यूज करके स्पेसिफाई करना होता है हमें। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ऐसे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ यहाँ से। सो ये थिंग रहती है। हम अभी जब सीएसएस पढ़ेंगे तब और स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, हाउ वी कैन स्टाइल द थिंग्स। सो ये हो गया अपना टेबल्स के बारे में। मैं भी बहुत ब्रीफ में रख रहा हूँ चीजें, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चीजों का क्योंकि आई हैव अ लेस टाइम। सो आई विल रिकमेंड कि इन सबको आपको दोबारा स्टडी करना पड़ेगा। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, आपको नहीं समझ आएंगी चीजें, थोड़ी सी एडवांस थिंग है, फॉर्म्स एंड टेबल्स, आपको खुद से एक बार लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू द थिंग्स फ्रॉम योर साइड। उसके बाद मेरे पास आती है सिमेंटिक एचटीएमएल। तो सिमेंटिक एचटीएमएल क्या करती है ना, जो एक तो हो गया काफी सारे
आप देखोगे जब आप कोडिंग करोगे, एक्चुअली जब साइट्स बनाओगे, तो काफी सारे यूजर्स सिर्फ डिव का यूज करते हैं। वो स्पेसिफाई नहीं करते डिव के अंदर एक्चुअल कंटेंट क्या है, इस वाले सेक्शन में एक्चुअल कंटेंट क्या है, ये काम क्या कर रहा है एक्चुअली। तो सिमेंटिक मीनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हेडर बना रहा हूँ तो उसको मैं हेडर टैग के अंदर लिखूंगा, नेविगेशन है तो उसको नेविगेशन टैग के अंदर लिखूंगा, साइड में कोई थिंग है साइड के अंदर आएगी, फुटर तो कोई थिंग है फुटर में आएगा। सो ये जो थिंग है ना, सबसे पहले तो जो डेवलपर बाकी काम कर रहे हैं उनको बताता है कि एक्चुअली है क्या इस चीज के अंदर। बहुत बड़ा कोड है तो एक्चुअली इसके अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है। एंड द नेक्स्ट थिंग जो एसईओ होती है उसको काफी इंप्रूव करती है। तो पूरे साइट का स्ट्रक्चर पता चल जाता है एक्चुअली है कैसा। इसमें मेरे को कुछ नहीं पता चलता ये थिंग और ये थिंग में डिफरेंस क्या है, ये थिंग क्या है, बट यहाँ मेरे को पता चल रहा है दिस इज द हेडर, दिस इज द फुटर, दिस इज द साइड ब्लॉक, दिस इज द आर्टिकल, पैराग्राफ, फिगर। सो जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वी यूज द सिमेंटिक एचटीएमएल, वी स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ द टैग, नॉट जस्ट यूज द डिफॉल्ट डिफ टैग। डिफ से भी सेम काम होगा, सेम डिस्प्ले होगा, बट प्रेफर ये रहता है। ओके, सो वी हैव डन विद द एचटीएमएल पार्ट। ओके, anyone have any queries till now? सो अभी तक हमारा जो बेसिक एचटीएमएल है, वी हैव कवर्ड द थिंग। सो 1 घंटा आई के समय हो गया एंड 1 घंटे मैंने जो बेसिक एचटीएमएल का ओवरव्यू है, सारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो सब चीजें हमने कवर कर लिया। एंड यही थिंग्स यूज होती है जब आप जितने बड़े प्रोजेक्ट्स पे चले जाओ, मेन यही थिंग्स, सारे टैग्स, फॉर्म, टेबल्स, यही सब यूज होता है। बाकी इसमें एट्रीब्यूट्स बहुत सारे आ जाते हैं, वो आपको कुछ स्टडी करने पड़े और क्या क्या ऑप्शन होते हैं। बेसिक सारा यही है, मतलब 70 to 80% थिंग्स यही है एचटीएमएल में, और ज्यादा थिंग्स नहीं है। Okay, so now let's move to the CSS part. Okay, so in the CSS stand for cascading style sheets. जैसे HTML stand करता है hypertextual mark language, CSS stand for cascading style sheet. So difference क्या है? HTML हो गया अपना content के लिए and CSS हो गया अपनी presentation, the main styling thing. CSS allows customization of colors, layout, font and many other things. If example अगर structure हो गया HTML, तो CSS is a paint, decoration and the arrangement of the furniture thing. So there are 3 ways जिसकी मदद से हम styling को add कर सकते हैं अपने HTML पेज में। So first is the inline tag, जैसे अभी हमने देखा था, हमने अभी जो style attribute का यूज किया था, तो मैंने अभी जैसे table tag के अंदर डायरेक्टली मैंने styling स्पेसिफाई कर दी थी style attribute का यूज करके। एट्रीब्यूट जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी अगर हम थिंग यहाँ पे पास करें ओपनिंग टैग के अंदर, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। Adding directly to HTML element using the style attribute. जैसे मैं डायरेक्टली स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कलर ब्लू होगा, सेमीकोलन एक स्टाइल को एंड कर रहा हूँ, देन मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ फॉन्ट साइज कोलन 30 पिक्सल। तो मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो मेरा स्टाइलिंग वर्क करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ स्टाइल, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 100 पिक्सल या 100 बाय डिफॉल्ट में लिख सकता हूँ। या सो यहाँ पे मेरा और आ गया। वो बहुत सारी चीजें और होती हैं, लाइक फॉन्ट फैमिली होती है मेरे पास, फॉन्ट फैमिली sans serif होती है मेरे पास, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन होती है यहाँ पे मेरे पास, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन करना मेरे पास, बहुत सारी तरह की, लाइक वी हैव हंड्रेड्स ऑफ CSS प्रॉपर्टीज। तो इसमें ज्यादा डीप डाइव नहीं जाना होता, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर ओनली 20 यूजिंग डे टू करते जाते हैं। वी रीच टूवर्ड लाइक 50 to 60% ऑफ द CSS थिंग, जो उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। कभी भी हमने को कंप्लीशन नहीं करना होता CSS का, उसी में हमने को 1-2 महीने नहीं लगाने होते। जस्ट कवर द बेसिक थिंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमें और पता चलते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या और थिंग्स हैं CSS के अंदर, तो वो थिंग होती है। तो काफी सारे बिगिनर गलती करते हैं कि वो HTML CSS पे इतना टाइम लगाते हैं, मास्टर करने लग जाते हैं, तो वो थिंग नहीं करनी होती है हमें। अराउंड 50-60% कवर करो एंड मूव नेक्स्ट। ओके, सो फर्स्ट हमने देख लिया इनलाइन वाला CSS का पार्ट। उसके बाद आ गया मेरे पास इंटरनल। मैं हेड के अंदर भी स्टाइल स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो रिटर्न स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन, हेड के अंदर मैंने ऐसे स्टाइल टैग बनाया, उसके अंदर मैंने टारगेट किया H1, दिस इज अ सिलेक्टर। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ H1 एलिमेंट को, टैग से मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक हो गया। H1 के लिए कौन कौन सा स्टाइल में स्पेसिफाई करना है, कलर ब्लू, फॉन्ट साइज ब्लू, जैसे हो गया। या
इसी सेम स्टाइल को मैं यहाँ से हटा के, यहाँ से मैंने हटा दिया था, हेड के अंदर लिखते हैं। हेड के अंदर मैंने एक एलिमेंट बनाया HTML का स्टाइल नाम का। दोबारा से कोपायलट रिसर्च भी हमारे इनको बंद करते हैं। तो यहाँ से मैं टारगेट करूंगा H1 को, एंड यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कलर, लेट्स से ब्लू कोलन, फॉन्ट साइज में सिर्फ कलर देते हैं। मेरा यहाँ पे कलर नहीं लगा, व्हाई इट इज सो, इसको सीधा लिखना है क्या? ओके, सीधा लिखना है, उस कॉलम के अंदर नहीं लिखना। डायरेक्टली आई कैन राइट हियर कलर और स्टाइल। मैंने HTML के हेड के अंदर ही मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग लिख दी H1 की। अगर मेरे पास एक और यहाँ पे H1 होता तो ये स्टाइलिंग उस पर भी लग जाती, सेकेंड हेडिंग। तो दोनों का कलर यहाँ से ब्लू हो गया। जितने भी H1 हो गए मेरे पेज में, सब पे ये स्टाइलिंग अप्लीकेबल होगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली H1 को टैग कर रहा हूँ। तो जितने भी मेरे पेज में उन सब पे लग जाएगी, बट मेरे को नहीं चाहिए ऐसा भी। मेरे पास पेज में 2 हैं हेडिंग, बट मैं चाहता हूँ सिर्फ पहले वाले पे लगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अपने पास आता है कंसेप्ट क्लासेस एंड आईडीज। यहाँ पे मैं इसको क्लास दे सकूँ। क्लास भी एक तरह के आईडी की तरह होगी, जो मैं इसको स्पेसिफिक यूनिकली सिलेक्ट करने के काम आती है CSS के थ्रू। ऐसे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ फर्स्ट हेडिंग, आई थिंक। And now when I go to the here, now I will not write the H1 here, I will write dot. Dot का मतलब मैं क्लास सिलेक्ट कर रहा हूँ, और कौन सी क्लास? फर्स्ट हेडिंग नाम की क्लास। कंट्रोलर्स, तो नाउ यू कैन सी मेरी जो पहली वाली हेडिंग है उसी के ऊपर स्टाइल लगी है, सेकंड के ऊपर नहीं लगी है। एंड अगर मैं यहाँ पे अगर सेकंड के ऊपर लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको भी सेम क्लास दे सकता हूँ, तो इसके ऊपर भी सेम थिंग अप्लाई हो जाएगी। ये थिंग होती है। तो दैट्स द मेन कंसेप्ट ऑफ द स्टाइलिंग। ऐसे सिमिलर होती है अपने पास आईडी, बट आईडी क्या होती है? हम एक एलिमेंट को एक ही आईडी दे सकते हैं। लाइक इसको हो गया फर्स्ट हेडिंग, एंड आई कैन राइट हियर सेकंड हेडिंग। या मैंने दोनों स्पेसिफाई कर दिया, फर्स्ट हेडिंग इसका भी नाम है, फर्स्ट हेडिंग इसका भी नाम है। अगर मैं डॉट से सिलेक्ट करूँ तो क्लास सिलेक्ट हो रहा है, अगर मैं हैश से सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास आईडी सिलेक्ट होगा। आईडी सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास हैश होता है, क्लास सेलेक्ट करने पर अपने पास डॉट होता है। ये थिंग रहती है। आईडी हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होनी चाहिए, ये रिकमेंडेड रहता है। एंड यही कन्वेंशन होता है कि अगर मैं यहाँ फर्स्ट हेडिंग इसको दे रहा हूँ तो इसको मैं फर्स्ट हेडिंग ना स्पेसिफाई करूँ, वो थिंग रहती है। क्लास हम रीयूज कर सकते हैं, हम क्लास मल्टीपल एलिमेंट को सेम क्लास नेम दे सकते हैं, वो थिंग है। ये हो गया अपना इंटरनल CSS का पार्ट। नाउ द एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हम अलग से CSS की फाइल बनाएंगे styles.css नाम की, एंड यहाँ पे हम स्टाइलिंग लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइक डॉट फर्स्ट हेडिंग कलर ब्लू, एंड यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। एंड व्हेन आई सी द पेज, यहाँ पे अभी ब्लू कलर मेरे को नहीं दिख रहा। व्हाई? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल तो लिख ली, बट मैंने इसको अभी HTML पेज के साथ लिंक नहीं किया। अभी मेरे HTML पेज को पता नहीं स्टाइलिंग कहाँ से उठानी है। तो मैं हेड के अंदर यहाँ पे मेरी जो स्टाइल शीट मैंने बनाई है इसको मैं लिंक करूंगा। वो कैसे करते हैं? इसके अंदर लिंक टैग होता है, लिंक CSS। यहाँ पे मेरा styles.css यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूंगा HRF में styles.css, तो मेरी लिंक हो जाएगी। ये रेफरेंस होता है, ये रिलेटिव कह सकते हो, कि बताता है कि एक्चुअली किस चीज को लिंक कर रहा हूँ। तो मैं स्टाइल शीट को लिंक कर रहा हूँ। कंट्रोल S करेंगे, एंड नाउ एज यू कैन सी मेरी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है CSS से। तो मैं यहाँ पे सारा लिख सकता हूँ। तो जो भी अपने मेजर प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे जितने भी स्टाइल्स लिखे जाते हैं वो अलग से CSS फाइल बना के ही लिखे जाते हैं, इसी HTML के अंदर नहीं लिखे जाते, क्योंकि फिर काफी CSS से ही भर जाता है पूरा HTML पेज। तो सेपरेट कर दे, कंटेंट को ये हैंडल करेगा, स्टाइलिंग को अलग से CSS फाइल हैंडल करेगी। तो ये थिंग है। ओके, तो जैसे यहाँ पे अपने पास एक्सटर्नल CSS क्रिएट अ सेपरेट डॉट CSS फाइल एंड लिंक्ड इनटू HTML। हमने एक्सटर्नल CSS फाइल बनाई, उसके अंदर हमने स्टाइल लिखा, एंड देन हमने उसको लिंक किया। उसके बाद CSS सिंटैक्स जैसे हमने लिखा, तो एक्चुअली वर्क क्या क्या है? तो सबसे पहले हमारा सिलेक्टर होता है। सबसे पहले जैसे हमने H1 लिखा था, फिर हमने क्लास को सिलेक्ट करने में डॉट फर्स्ट हेडिंग, आईडी की सिलेक्शन में हैश। तो यहाँ पे सिलेक्टर स्पेसिफाई करते हैं, हमने सिलेक्ट किस चीज को करना है, HTML में सिलेक्ट कौन से एलिमेंट को करना है, तो वो स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है पूरा ब्लॉक होता है, एक डिक्लेरेशन होती है
प्रॉपर्टी और वैल्यू से बनकर पूरी डिक्लेरेशन बनती है। फिर हम ये सेमी कॉलन से हम एक डिक्लेरेशन को दूसरे स्पेसिफाई करते हैं, लाइक कलर ब्लू एक डिक्लेरेशन होगी, एक थिंग होगी, उसके बाद फॉन्ट साइज 12। सो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर होता है सीएसएस सिंटैक्स का। सिलेक्टर्स में हम एलिमेंट से सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे पैराग्राफ से सारे पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने H1 से किया था। उसके बाद हमारे पास क्लास सिलेक्टर होता है, जैसे अभी हमने देखा कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को हमने सिलेक्ट करना है, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे हमने लगाना है, then we use a class, then we have the id, select a specific element with the specific id unique, उसके लिए हैश होता है। yeah, so now we have the css colors are specified using predefined color name और RGB hex है। चले तो ये कलर्स के फॉर्मेट्स होते हैं। RGB आपने सुना होगा, हेक्स कलर सुना होगा, ये भी होता है RGB, HSL। सो यहाँ पे जैसे मैं कलर दे रहा हूँ तो आई कैन गिव इट लाइक अ नेम, प्रीडिफाइन कुछ नेम होता है, ब्लू वायलेट ब्लू, और आई कैन स्पेसिफाई हेक्स कलर कोड, जैसे व्हाइट के लिए होता है FFF होता है यहाँ पे हेक्स में। तो अगर मैं व्हाइट करूंगा तो यहाँ पे कलर तो आ जाएगा, बट वो मेरे को व्हाइट पूरा दिखेगा। सो अप लाइनिंग वाइज 5 बार आ गया, वाई इट इज नॉट अप्लाइंग। ओके, मेरे को उसके अंदर नहीं लिखना, कोटेशंस के अंदर ऐसे लिखना है इसको। तो मेरे पास व्हाइट कलर हो गया। अगर मेरे को ब्लैक करना है तो उसके अंदर 000 होता है, 000 मतलब ब्लैक। और अगर मैं इसका और कोई कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मेरे पास और कोई कलर आ जाएगा। सो दिस इज द ब्लू। तो ऐसे हेक्स कलर कोड होते हैं VS कोड के अंदर, हमें टिकर भी मिल जाता है, तो यहीं से मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ हेक्स कलर कोड इसका। सो ये थिंग रहती है, आई कैन कस्टमाइज द कलर। उसके बाद मेरे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक फॉन्ट साइज। अभी जैसे हमने देखा था फॉन्ट साइज, आई कैन स्पेसिफाई प्रीडिफाइन लार्ज, लार्जर, और कस्टम पिक्सल में स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि 100 पिक्सल चाहिए मेरे को। फॉन्ट साइज हो गया। उसके बाद अपने पास और प्रॉपर्टीज होती है, लाइक बैकग्राउंड कलर है, हेडिंग का मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो आई कैन स्पेसिफाई हियर लाइक ब्लैक दे सकता हूँ, तो इसके पीछे बैकग्राउंड जो होगा ब्लैक आ जाएगा पूरे एनिमेशन। तो अब आपको ब्लॉक का समझ आ रहा होगा। तो जो H1 है पूरा कवर कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है ब्लैक कलर, जबकि कंटेंट सिर्फ यहीं तक है। ओके, मूविंग नेक्स्ट। जैसे अभी हमने देखा कलर वैल्यू, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्री डिफाइंड कलर नेम, हेक्स कलर कोड, RGB, HSL, डिफरेंट टाइप्स के कलर फॉर्मेट होते हैं। मेन ज्यादा यही यूज होते हैं, हेक्स यूज हो गया, RGB यूज हो गया, मेन ज्यादा आपको ये दिखने को मिलेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ये मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा, आप खुद स्टडी करना द CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। हम कैसे कैसे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने कलर डाला, वी कैन आल्सो ऐड अ इमेज इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इमेज कैसे लाते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये आप खुद स्टडी करना गाइस। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट थिंग। तो उसके बाद हमारे पास CSS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग थिंग होती है, फॉन्ट फैमिली चेंज करना, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, वो सब थिंग है। तो यहाँ पे अगर मेरे को और कोई फॉन्ट फैमिली देने, फॉन्ट चेंज करना है, सो आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स हियर। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉन्ट ले लेंगे। सो आई गॉट दिस टाइप ऑफ फॉन्ट है। अगर मेरे को और कुछ करना है इसको, सो फ्रैंकलिन कुछ हो गया, सो फॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेसिफाई कर लेते हैं। फ्रैंकलिन को एक मीडियम, देन एरियल नैरो, देन एरियल, देन सैंस सेरिफ। इसका यूज किया था, अगर ये फॉन्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो ये वाला होगा रेंडर, अगर ये नहीं है तो ये वाला होगा, एंड कुछ भी अवेलेबल नहीं तो ये लास्ट वाला रेंडर हो जाएगा। सो फॉलबैक सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि कई कई सिस्टम में सपोज ये फॉन्ट नहीं है सिस्टम में इंस्टॉल्ड, तो ये वाला उसकी जगह पे चल जाएगा। तो ये जनरल ब्लैक स्पेसिफिक रहती है कि हम अगर फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो और कोई फॉन्ट शो कर दें यूजर को। सो ये थिंग होगी। उसके बाद मैं फॉन्ट का वेट स्पेसिफाई कर सकता हूँ, कितना मेरे को बोल्ड रखना है। आई कैन स्पेसिफाई 900 हियर, फॉन्ट विल बी बोल्ड। अभी तो ये H1 था तो पूरा बोल्ड था, अगर मैं यहाँ पे 100 करूंगा सो बोल्ड। ओके, सो H1 है तो डिफॉल्ट बोल्ड ही रहता है। सो लेट मी कन्वर्ट इन द पैराग्राफ थिंग and then specify the things here. Nine hundred change क्यों नहीं हो रहा है? Like font बड़ा है इसका क्या? Okay, 20 pixel. ये font का इशू है ये।
ओके, तो जो हमारे पास फॉन्ट था वो डिफॉल्ट बोल्ड था, वो फॉन्ट वेट सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे पास बाय डिफॉल्ट वो आ रहा था। तो नाउ एज यू कैन सी आई कैन स्पेसिफाई द वेट से, सो वेट में कम ज्यादा कर पा रहा फॉन्ट का, सो वो थिंग है। बैक में टेस्ट होते हैं। ओके, सो ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं। आई कैन यूज द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इन द CSS टू मेक इट इटैलिक, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली। वैसे टेक्स्ट की काफी सारी होती है, जैसे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन देखा, अंडरलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफर मेरे को सारा अपर केस करना है, लाइन हाइट, दो लाइन के बीच कितनी हाइट रहेगी, लेटर स्पेसिंग, वो सब थिंग्स। सो ऐसी टन्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं अपने पास HTML में। सो एक बार में हमें सभी याद नहीं रखनी पड़ती, जब भी मैं किसी चीज का यूज है या तो सर्च कर लो, एंड जैसे जैसे हम यूज करते रहते हैं हमें रिमेंबर हो जाती है सारी चीजें। उसके बाद अपने पास आता है CSS बॉर्डर थिंग, कि CSS की मदद से हम वो जो बॉक्स बॉर्डर होता है, जैसे अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है। सो ये बॉर्डर कैसे मैं ऐड कर सकता हूँ किसी एलिमेंट में। सो यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, एक डिव का क्रिएट करते हैं, डिव हेलो दिस इज द बॉक्स। सो मैंने डिव क्रिएट किया, दिस इज द बॉक्स आया यहाँ पे, एंड इस बॉक्स का मेरे को साइज देना सबसे पहले। यहाँ पे मैं गया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक क्लास से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस डिव को, डिव क्लास बॉक्स डॉट बॉक्स। मैं इसको विथ दे देता हूँ, बॉक्स की मेरे को विथ रखनी है सपोज 500 पिक्सल, हाइट रखनी है मेरे को इसकी 500 पिक्सल, स्केयर बन जाएगा। सो अगर अभी मैं देखूंगा तो मेरे को कुछ अभी दिख नहीं रहा कि बॉक्स है या नहीं है। सो आइदर आई कैन गिव इट द BG कलर, बैकग्राउंड कलर रेड दे सकता हूँ, तो मेरे को रेंडर हो जाएगा बॉक्स 500 बाय 500 पिक्सल का, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। सो लेट्स टेक इट 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको बॉर्डर दे सकता हूँ, मेरे पास बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर मेरे पास बॉर्डर आ जाए मेरे पास। यहाँ पे मेरे को डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है साइज की, क्या चाहिए मेरे को, बॉर्डर 2 पिक्सल, बॉर्डर वेट विथ, बॉर्डर विथ थी तो ये था बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर मेरे को चाहिए रेड, एंड बॉर्डर स्टाइल मेरे को सॉलिड चाहिए, डैश चाहिए, कैसे चाहिए, तो अभी सॉलिड आ गया, मैं इसको डैश कर सकता हूँ ये थिंग। यहाँ से मैं विथ से इसकी विथ कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे को इतना बड़ा बॉर्डर चाहिए। तो ये मेरे को 3 लाइन में लिख के स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। अगर मेरे को एक लाइन में स्पेसिफाई करना है तो मैं लिख सकता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल मेरे को विथ दे दो, मेरे को सॉलिड फॉर्मेटिंग दे दो, और कलर उसका रेड दे दो, तो तब भी मेरे पास ये वर्क करेगा सेम वे में। हाँ, कलर मैं इसका ब्लू कर सकता हूँ, सेम अगर मैं सिर्फ बॉर्डर स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, वही थिंग है। आप 3 लाइन में भी लिख सकते हो या शॉर्ट हैंड का यूज करके लिख सकते हो, जनरली यही यूज होता है, शॉर्ट हैंड यूज करते हैं हम एक लाइन में स्पेसिफाई करने के लिए। उसके बाद अपने पास आती है CSS मार्जिन, मार्जिन इज स्पेस आउटसाइड एन एलिमेंट, लाइक मैं मार्जिन आपको बताता हूँ इसमें होती है। सो इस बॉक्स का मैं मार्जिन देखता हूँ, अभी अब अगर आप पेज में देखोगे तो इससे सटा हुआ है। एक तो HTML डिफॉल्ट मार्जिन ऐड करता है, तो उसको मैं 0 कर देता हूँ। एक यूनिवर्सल वेक्टर होता है स्टार नाम का, मतलब जो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई करने, सारे एलिमेंट्स पे कोई भी मेरे को स्टाइल अप्लाई करनी है तो स्टार यूज होता है उसके लिए। ऐसे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ मार्जिन। तो अभी जैसे आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट है पूरा पेज से सटा हुआ नहीं है, कुछ यहाँ पे मार्जिन मिल रही है इसको, तो मैं डिफॉल्ट मार्जिन को यहाँ पे 0 कर देता हूँ। सो नाउ ऑल द जो एलिमेंट्स है वो पूरे एंड से लगे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स है ये इसको मार्जिन मिल जाए, पूरा यहाँ से कनेक्टेड ना हो, तो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल। तो इस चारों तरफ से फ्रॉम द लेफ्ट टॉप राइट बॉटम्स फ्रॉम द ऑल 4 एंड्स इट विल टेक द 10 पिक्सल मार्जिन। मेरे को चाहिए कि नहीं, मेरे को सिर्फ मार्जिन टॉप चाहिए 10 पिक्सल, मेरे को बाकी से मतलब नहीं है। सो आई कैन राइट मार्जिन टॉप, तो बस टॉप से उसने मार्जिन ले ली 10 पिक्सल की। मेरे को बॉटम चाहिए, वैसे मैं बॉटम स्पेसिफाई कर सकता हूँ, मेरे को लेफ्ट चाहिए, मेरे को राइट चाहिए, ऐसी होती है मार्जिन। ब्लॉक होती है, ब्लॉक मतलब 10 पिक्सल, तो ये ऊपर नीचे से ले लेगा, और मार्जिन इनलाइन होती है लेफ्ट राइट के लिए। ये अलग अलग तरह से मार्जिन स्पेसिफाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है ऐसे हम स्पेसिफाई करते हैं क्लॉक साइकिल में, कि लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। सो मैं वैल्यू लिख सकता हूँ 10 पिक्सल लेफ्ट से, 20 पिक्सल टॉप से, 5 पिक्सल राइट से, एंड 2 पिक्सल बॉटम से। तो एक लाइन में मैंने स्पेसिफाई कर दिया अलग अलग, तो यहाँ से कुछ अलग मार्जिन, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है। सो ये थिंग
होती है स्पेसिफाई में, एंड जनरली हम एक लाइन में ऐसे यूज करते हैं मार्जिन को। उसके बाद आती है पैडिंग, हमने कवर कर लिया मार्जिन। मार्जिन इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन तो होती है ये जो बॉक्स है, ये बाकी कंटेंट से कितना दूर रहेगा। उसके बाद हमारे पास पैडिंग, जो बॉक्स के अंदर कंटेंट है वो बॉक्स के अंदर के बॉर्डर से कितना अंदर को रहेगा। एक बार आपको लिख के दिखाओ जब ज्यादा समझ आएगा आपको। पैडिंग एंड मार्जिन बहुत ज्यादा यूज होती है अपने वेबसाइट्स में। तो यहाँ पे मैंने पैडिंग भी 10 पिक्सल स्पेसिफाई कर, एज नाउ यू कैन सी जो कंटेंट है दिस इज द बॉक्स। पहले ये पूरा सटा हुआ था बॉक्स के जो एज है उससे, अब ये 10 पिक्सल अंदर को, ऊपर से भी इधर को भी। तो ये बॉक्स अब जो भी सारा कंटेंट मैं लिखूंगा, अगर मैं इसको बड़ा करूँ या कुछ और कंटेंट लिखूं या मैं लोरेम एप्सम लिखूं, लोरेम 10। सो लोरेम 10 करके मेरे को जिससे टेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे। सो यहाँ पे हर एक एंड से मेरे को 10 पिक्सल की पैडिंग है यहाँ पे। अगर मैं ये नहीं लिखता से पूरा सेट जाता है इससे। सो आई होप मार्जिन एंड पैडिंग आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इट इज मोस्ट यूज थिंग इन द CSS। जैसे डायग्राम में शो किया, मार्जिन द स्पेस आउटसाइड एन एलिमेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद कैसे कैसे स्पेसिफाई करना है मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट एक साथ। जैसे मार्जिन अगर हम दो स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये हो गया अपना टॉप बॉटम के लिए, हो गया लेफ्ट राइट के लिए। उसके बाद शॉर्ट हैंड हो गया अपने पास क्लॉक वाइज सेकंड में, टॉप मार्जिन 12 होगी, राइट 16 होगी, बॉटम अपने पास 2 होगी, लेफ्ट अपने पास 0 हो गई। हमने पैडिंग स्टडी कर ली। मार्जिन तो बॉक्स के बाहर की स्पेसिंग थी और पैडिंग अपने बॉक्स के अंदर की स्पेसिंग थी। कंटेंट को बॉक्स के अंदर कितना स्पेस अंदर तक पुश करना, कितनी स्पेस रखनी है वो थिंग। हमने हाइट पढ़ लिया, हमने विड्थ पढ़ लिया, जो हम साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं हाइट विड्थ से बॉक्स का कितना साइज विड्थ होगा, ये स्पेसिफाइंग दैट यूजिंग द हाइट विड्थ। वी कैन यूज द यूनिट, जैसे मैंने पिक्सल का अभी तक हमने मेरे को पिक्सल्स का यूज करते हुए देखा, वैसे डिफरेंट डिफरेंट और यूनिट्स होती हैं। पिक्सल तो स्टैटिक, अगर मेरे को VH में जाना है तो विड्थ मेरे को 100 VW कर दो, जितनी मेरी स्क्रीन की विड्थ है VW में तो व्यू पोर्ट विड्थ, तो उतनी मेरे को बॉक्स की भी विड्थ दे दो, तो पूरी विड्थ ले लेगा ये। या तो जितनी मेरी स्क्रीन की विड्थ थी उसने उतनी विड्थ ले। मेरे को हाइट भी चाहिए कि जितनी मेरी स्क्रीन की हाइट है वो उतनी हाइट भी ले ले। सो मेरे को इतनी हाइट मिल गई, तो मेरी स्क्रीन की पूरी हाइट ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो मेरे को पूरी इसने हाइट भी दे दी। सो ये डायनेमिक हो गया, हर एक स्क्रीन के हिसाब से उसके हिसाब से हाइट भी सेट कर देता है। उसके बाद मेरे पास परसेंट आते हैं पेरेंट कंटेनर के, मेरे को वो परसेंट में लेना है, ये आप आगे स्टडी करेंगे, अभी मैं कवर नहीं कर रहा परसेंट को। तो जो पेरेंट कंटेनर उसके साइज का पूरा ले लो। तो विथ जैसे 100% ले रहा है क्योंकि HTML जो है बाय डिफॉल्ट 100 BH पे सेट रहता है, तो इसने पूरा विथ ले लिया। बट हाइट जो लिमिटेड है कंटेंट उसके रहता है। मैं ज्यादा इस पे कवर नहीं करूंगा व्हाई दिस बिहेवियर फॉर नाउ। ओके, तो बॉक्स मॉडल होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द CSS वर्ल्ड। हमें बॉक्स मॉडल पता होना, जो भी HTML के अंदर थिंग्स होती है ना सारे बॉक्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स है सबके सब बॉक्स हैं। जैसे आप देख रहे हो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स है, इसका एक अलग बॉक्स है। जैसे इमेज रेंडर तो ऐसे हो रही बट है एक इनसाइड बॉक्स, ये भी इनसाइड बॉक्स है। तो HTML हर एक थिंग अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको शो करूँ तो हर एक थिंग HTML के अंदर बॉक्स है। दिस इज बॉक्स, दिस इज बॉक्स, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ये पेरेंट बॉक्स हो गया, इमेज का बॉक्स, लिंक का बॉक्स, तो सारे बॉक्स हैं। तो बॉक्स मॉडल हमें समझना बहुत जरूरी है इन द CSS थिंग। सो बॉक्स मॉडल क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कंटेंट आता है जो हाइट विड्थ स्पेसिफाई करते हैं, ये वाली लाइन होती है। उसके बाद होती है पैडिंग जो सेपरेट करती है उसको बॉर्डर से। देन अपने पास बॉर्डर पैडिंग के बाद आती है। देन उसके बाद आती है मार्जिन, मार्जिन सबसे आउटर पास्ट होता है जो स्पेसिफाई करते हैं। फिर आती है बॉर्डर, देन पैडिंग जो, एंड फिर जो हम विथ एंड हाइट स्पेसिफाई करते हैं वो अप्लाई होती है। ये हर एक एलिमेंट में सेम बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट अप्लाई होता है। सो यू शुड नो अबाउट इट। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने करी है, सो एक बॉक्स बनाया है यहाँ पे, उसमें हमने विथ दे दी, हाइट दे दी। उसके बाद हमने पैडिंग बॉर्डर स्पेसिफाई किया 5 पिक्सल का, एंड उसके बाद जो मार्जिन दी ये बॉर्डर के बाहर को है, ये वाला जो पार्ट है ये 30 पिक्सल का उधर को है। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया बॉक्स को व्हाइट, और टेक्स्ट लाइन को हमने सेंटर कर दिया, तो ये जो हॉरिजॉन्टली है टेक्स्ट सेंटर हो गया मेरा। सो दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग। उसके बाद मेरे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी आती है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी मतलब हो गया कि अगर मेरे को कोई ब्लॉक एलिमेंट है उसको मेरे को इनलाइन में बनाना है या इनलाइन को ब्लॉक में करना है, मेरे को कस्टम चेंज करना है। जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, जो पैराग्राफ था वो अपना डिफॉल्ट क्या था, ब्लॉक एलिमेंट था, बट मैं CSS की मदद से उसको इनलाइन बना सकता हूँ।
और जैसे स्पैन था वो इनलाइन था, मैं CSS की मदद से उसको ब्लॉक बना सकता हूँ। या और सर्च ब्लैक फ्लेक्स होती है, आप आगे चल के फ्लेक्स पढ़ोगे। फ्लेक्स इज मोस्ट यूज्ड इन लेआउट थिंग, जो भी हम टेक्स्ट एंटर करते हैं लेआउट बनाते हैं सब में फ्लेक्स यूज होता है। एंड बाकी सारी होगी ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, नन। नन से मतलब एलिमेंट को हाइड करना हमने स्क्रीन से हटाना है तो उसके लिए नन होता है। तो जैसे मेरा हेडिंग था अभी, तो यहाँ पे हेडिंग थी, एक हेडिंग ये थी, ये पूरा हेडिंग ये था, एंड सेकंड हेडिंग ये थी। एंड नाउ आई कैन मेक द हेडिंग डिस्प्ले की मैं इनलाइन करके ये इनलाइन बन जाएगा। तो एज यू नाउ कैन सी मेरा एक ही लाइन में आ रहा है ये। सो ये इनलाइन बन गया। अगर मेरे को इसकी डिस्प्ले नन कर दूंगा तो हाइड हो जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं, पेज पे शो ही नहीं होगा। डिस्प्ले मतलब हाइड मतलब विजिबल, उसको हटा दो यहाँ से, वो दिखेगा नहीं। वैसे विजिबिलिटी भी होती है, एक होती है डिस्प्ले नन, एक होती है विजिबिलिटी नन, विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी हिडन क्या करता है, वो कंटेंट वहीं पे रहता है बट दिखता नहीं है, स्पेस ले रहा होता है वो, बट डिस्प्ले ने उसको कंटेंट को भी शो नहीं, रेंडर ही नहीं करता वहां पे। सो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ओके, मूविंग फर्दर नाउ, फ्लेक्स बॉक्स का मैं थोड़ा सा बस इंट्रो देना चाहूंगा एक्चुअली होता क्या है। तो फ्लेक्स बोर्ड अब में जो लेआउट कंट्रोल करना है कंटेंट का बॉक्स के अंदर, तो जैसे मैंने बॉक्स बनाया था, इसका मैं थोड़ा सा हाइट विड्थ बढ़ा लेता हूँ। सो इसको 500 पिक्सल ले लेते हैं, इसको भी 500 पिक्सल ले लेते हैं। ओके, सो इसके अंदर मैं बॉक्स के अंदर अभी जैसे मैंने कंटेंट लिखा था, इसके अंदर मैं चाइल्ड बॉक्स बनाऊंगा, div क्लास चाइल्ड बॉक्स, और चाइल्ड बॉक्स की मैं अलग से प्रॉपर्टी दे दूंगा यहाँ पे। चाइल्ड बॉक्स की प्रॉपर्टी होगी लाइक विद, इसकी मैंने स्पेसिफाई कर दी 50 पिक्सल, हाइट मैंने स्पेसिफाई कर दी 50 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने स्पेसिफाई कर दिया रेड। सो मेरे पास बॉक्स के अंदर एक अलग बॉक्स आ गया, तो पेरेंट बॉक्स, उसके अंदर एक चाइल्ड बॉक्स। अब मेरे को अलाइन करना है, मेरे को यहाँ पे इसको यहाँ पे अलाइन करना है, यहाँ पे अलाइन करना है, इधर अलाइन करना, वो कैसे होगी, तो वो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करके स्मूथली इसको अलाइन कर सकता हूँ। मैं पेरेंट बॉक्स को प्रॉपर्टी दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। नाउ इट इज अ फ्लेक्स, मैं जो अंदर कंटेंट उसको कहीं पे भी लाइन कर सकता हूँ। तो जस्टिफाई कंटेंट मैं एंड करूंगा, सो ये एंड में ले जाएगा। मेरे को यहाँ पे चाहिए सेंटर, जो जस्टिफाई है वो कंट्रोल करता है हॉरिजॉन्टली कैसे लाइन करना है। एंड मतलब एंड में, सेंटर मतलब सेंटर में, स्टार्ट मतलब स्टार्ट, डिफॉल्ट स्टार्ट ही रहता है, स्टार्ट। और उसके बाद होता है अपना अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम वर्टिकल अलाइनमेंट को कंट्रोल करता है। अगर अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा तो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, और अगर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। तो मेरा बॉक्स ये सेंटर में आ गया। सो आपने काफी बार मीम्स देखी होगी, तो डिव में सेंटर ही नहीं कर पाते हैं काफी सारे लोग, सेंटर ही नहीं होती थी। बट विद फ्लेक्स बॉक्स इट इज वेरी सिंपल, आपको बस 3 लाइंस लिखनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन सेंटर, एंड जो भी आपका चाइल्ड है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, जैसे भी टाइप का कंटेंट है वो। और ऐसे कंट्रोल करके मैं इसको एंड में स्पेसिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको इधर यहाँ पे एंड में ले जा सकता हूँ। सो ये थिंग है फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। फ्लेक्सबॉक्स इज अ एडवांस कंसेप्ट इन द सीएसएस। ये तो बेस मैंने आपको बस फंडामेंटल बताया, एक्चुअली सीएसएस है क्या, मेन एक्सिस जिसका हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और क्रॉस एक्सिस वो थिंग होगी, अलाइनमेंट जैसे हमने देखी। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, सारे कंटेंट्स को इक्वली स्पेस डिवाइड कर दो, आप नेक्स्ट लाइन में ले आओ, ग्रो स्ट्रिंग, बहुत सारी होती है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, जो मतलब सबसे ज्यादा यूज यही होती है सीएसएस में जब भी हमें लेआउट करना होता है। सो ये थिंग है, वेरिएबल्स हम कवर नहीं करेंगे और दिस सेशन, इट इज एडवांस थिंग। मतलब अगर हमें रियूजेबल बनाने हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं जहाँ को मेरे को बार बार यूज करना है, तो मैंने प्राइमरी को सेट कर दिया, मेरे को हेडिंग में वही थिंग यूज करनी है, बटन में भी और कहीं पे मल्टीपल जगह यूज करनी है, तो मैं वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा उसको और बार बार उसको यूज कर लूंगा। सो वेरिएबल उस काम आते हैं। उसके बाद मेरे पास मीडिया क्वेरी आती है, तो लाइक मेरे को फोन स्क्रीन में अलग अलग तरह से रेंडर करना है, डेस्कटॉप स्क्रीन में मेरे को अलग तरह से रेंडर करना है। जैसे आप फोन स्क्रीन में देखते हो तो वेबसाइट के जो कार्ड्स हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होते हैं, बट ऑन द डेस्कटॉप वो सॉरी ऑन द मोबाइल स्क्रीन इट डिस्प्ले द वर्टिकली जो कार्ड्स आते हैं, बट ऑन द डेस्कटॉप इट डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टली, क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट है, विड्थ छोटी होती है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीडिया जब अपने पास विड्थ जो है मैक्स विड्थ जब तक ये हो, मतलब मोबाइल स्क्रीन की बात कर रही है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, कॉलम वाइज कर दो, बट उसके बाद उसको रो वाइज कर दो, डिफॉल्ट उन्होंने रो स्पेसिफाई किया होगा। So yeah, this is our HTML CSS basic thing. So I hope all of you have learned something interesting in this thing, HTML CSS. तो लास्ट जो हमारा है हम डिप्लॉयमेंट का देख लेते हैं। तो अभी आप जिसके बाद जो भी आपने चीजें सीखी है,
हमारा वर्कशॉप का टाइम होने वाला है, तो हम फर्दर मूव नहीं करूंगा. आई विल जस्ट टेल हाउ टू होस्ट योर साइट. जो भी आप बनाओगे उसको लाइव कैसे लेके आना है. तो जैसे हमारा ये वाला पार्ट है HTML का, जो भी हमने अभी पेज बनाया, सैंपल सा ड्राफ्ट सा जो भी बनाया, तो ऐसे ही आप अपना, मैं रिकमेंड करूंगा आप पोर्टफोलियो बनाना. उसमें आप अपनी इमेज ऐड करना, टाइटल स्पेसिफाई करना, उसके बाद पैराग्राफ लिखना, उसमें सोशल मीडिया के जो हैंडल्स है वो स्पेसिफाई कर सकते हो. अलग अलग टाइप के सेक्शन बना सकते हो, उसमें हेडिंग दे सकते हो, अबाउट मी, अबाउट माई एजुकेशन में लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हो, हॉबीज, वो सब थिंग. तो वैसे एक पेज बनाने का ट्राई करना, HTML CSS का यूज करना उसमें स्टाइलिंग के लिए. एंड देन जब आपका स्टाइल बन जाएगा तो उसको होस्ट करने के लिए आप कैसे होस्ट कर सकते हो. तो हमारे पास एक साइट है instahost.live. सो यहाँ पे जाके आप जो भी आप वेबसाइट बनाओगे उसको आप फ्री में होस्ट कर फाइल. तो अगर आपको किसी दोस्त या फ्रेंड को शो करना है तो आप वहां से शो कर सकते हो. सो आई विल गो हियर, डिड माई अकाउंट, या फिर जो मैंने अभी फाइल बनाया, सो इन द डेस्कटॉप फ्लो एंड फोक, सो आई कैन क्लिक इन द अपलोड. मेरे जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे एंड आई कैन स्प्रे फॉर कैन फ्लो and click on the deploy, and within 5 to 10 seconds my site will be live. Yeah, so now my site is live to the world. Now you can search in your device too, same URL आप type करेंगे अपने device में, so you will get the website. आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं. So similarly in the same way you can host your site. जिस तरह की वेबसाइट्स बनाएंगे you can host here. So that's it guys for today's workshop. I know is this काफी फास्ट और काफी ऊपर ब्रीफ से मैंने कवर किया, but I have given you the broad idea of the things that is involved. HTML CSS is the basic thing. मेरे पास और भी स्लाइड्स थी जो कवर करने की थी, but I have not time for that. So yeah, hope you guys enjoyed. Yeah. Okay guys, if you have any queries, Q&A, please ask. अगर किसी को कुछ डाउट है, आगे कैसे फॉलो करना है, कैसे सीखना है, कहाँ से लर्न करना है, एनीथिंग एल्स. कोई क्वेरी नहीं? ओह विकास, थैंक्स. Sir, Yes. can you send that link? Of the website? Yeah, yes. Insta host की ना? नहीं सर, जो आपने बनाई है, जो जो for डिप्लॉय connect- कर. ओके. हाँ यार. Yeah. Sir, can be modified using CSS properties. Size can be, okay, yeah, width and height. Anyone have any queries? आगे कैसे करना follow या anything else? ये तो बहुत बेसिक था, इससे आप रियल साइट्स नहीं बना सकते. It's like you will call the, we have to learn the ABCD of website development. जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. कोई भी अगर बंदा स्टार्ट करता है तो यहाँ से स्टार्ट करता है. लेटर ऑन यू विल डीप डाइव इनटू द JS थिंग, मेजर थिंग जो आती है वेबसाइट डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट. उसके बाद हम फ्रेमवर्क सब पढ़ते हैं लाइक रिएक्ट थिंग, वो सब चीजें. सो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं. सो या जो हमने अभी मीडिया कैरीज का देखा, जो हमने अभी मीडिया कैरीज की स्लाइड देखी थी, तो उसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं साइट को. जैसे यहाँ पे है, सो यहाँ पे सेम वेबसाइट में मीडिया कैरी लग रखी है. सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 कार्ड्स एक लाइन में आ रहे हैं. बट व्हेन आई स्विच टू स्मॉलर viewport, सो ऑन द स्मॉलर viewport अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव करें, सो जैसे साइज कम होता रहेगा वैसे वैसे लेआउट चेंज होता रहेगा. तो 2 कॉलम में आ गया एंड ऑन द स्मॉल ये 1 कॉलम में आ गया. सो यहाँ पे मीडिया क्वेरीज यूज हो रखी है, विथ के अकॉर्डिंग ये स्टाइलिंग चेंज कर रहा है CSS की. सो सेम थिंग है, ऐसे हम मीडिया क्वेरीज अप्लाई करते हैं. इस साइज पे ये स्टाइलिंग्स होंगी. वैसे मैं डिफरेंट टाइप्स की मीडिया क्वेरी स्पेसिफाई कर सकता हूँ. सो ये थिंग रहती है. Any platform you can suggest to learn and deep dive. Okay, so मैं अपना खुद का बताता हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया था वेबसाइट डेवलपमेंट. So I started it when I was in class 11th back in I guess 2023. So तब ना एक कोर्स लिया था मैंने, Udemy पे ही है, एंजेला यू नाम से है. काफी वर्ल्ड फेमस कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आई वुड से अवेलेबल फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट.
आई गेस 400-500 का आपको मिल जाएगा यूडीमी से, एंड प्रॉपर उसमें आपको रोड मैप मिलेगा, प्रॉपर उसमें टास्क, प्रोजेक्ट्स, मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, सारा कुछ वहाँ पे गाइड किया जाएगा, असेसमेंट सब। तो आई विल रिकमेंड कि उस पे आप जाइए, अगर आप 400-500 आराम से अफोर्ड कर ही लेंगे, क्योंकि यूट्यूब से अच्छा आपको वहाँ पे सारा स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट बिल्डिंग चैनल्स मिलेंगे, आप उससे बहुत अच्छे से सीख पाओगे। 2-3 महीने में आप सारा फाउंडेशन कवर कर लोगे, एंड उसके बाद आप प्रोजेक्ट खुद का बनाना स्टार्ट करिए। जो बेस्ट लर्निंग होती है ना, वो खुद से बना के आती है, नॉट फ्रॉम द एनी ट्यूटोरियल आप जो देखोगे उसको बना बना के सीखो। आप खुद का कोई आइडिया पकड़ो, कुछ प्रोजेक्ट पकड़ो, कुछ यूनिक सा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड उस पे काम करो, एंड यू विल लर्न अ लॉट। मैंने भी लाइक 11th में जब स्टार्ट किया था, सो मेरा ये था कि मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही मैंने लाइक इतना कुछ सीख लिया जो मैं किसी ट्यूटोरियल से सीख ही नहीं पाया। एंड सेम थिंग अप्लाइज टुडे फॉर मी, जो भी मेरे को कुछ सीखना होता है, सो आई जस्ट क्वेरी फ्रॉम द गूगल और थिंग, जब भी मेरे को कोई दिक्कत आती है मैं ऑन द गो सीखता बनाते बनाते। Some tips or myth for someone who wants to start website development right now. Okay, सबसे पहले टिप यही होगी कि स्टार्टिंग में एआई का यूज मत करो वेबसाइट बनाने के लिए। बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं, वो उनको प्रोजेक्ट बनाने का मतलब होता है, वो एआई का यूज करते हैं, एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, मुझसे सब कुछ निकाल देते हैं, साइट तो उनकी बन जाती है कैसे न कैसे करके, बट वो कुछ सीख नहीं पाते, उनको कुछ पता नहीं होता एक्चुअली वर्क कैसे कर रही है, जो टैग है उसका यूज क्या रही है, ये थिंग हमने लिखी क्यों है। तो सबसे पहले थिंग वही होगी कि वहां पे आप सीखो, बेसिक्स सीखो, स्क्रैच से करो। एआई का यूज बिल्कुल मत करो वहां पे, एआई का यूज बस समझने के लिए करो कि ये थिंग जो है ये एक्चुअल वर्किंग क्या करती है, उसको बोलो कि मेरे को एग्जांपल दे, मेरे को समझाओ। एंड मैंने भी सेम किया था जब 20 बैक एंड 20 तब ChatGPT लॉन्च ही हुआ था, तब मैंने बहुत दिमाग खराब किया था, मेरे को समझा भाई इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, जो पैराग्राफ है नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, स्पेस क्यों नहीं आ रही, वो सब थिंग है। तो ये थिंग थी। सो और टिप्स एंड और रहेगी कि बी कंसिस्टेंट। अब मतलब ये नहीं है कि आप एक महीने में ही वेबसाइट डेवलपमेंट सीख जाओगे, यू हैव टू गिव 5 to 6 month टू इट टू लर्न इट प्रॉपर्ली, कि आपको एक इंटर्नशिप या जॉब मिल सके, आप इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बना सको। तो मिनिमम टाइम इतना आपको देना पड़ेगा, रोज के 3-4 घंटे आपको देने पड़ेंगे, एक कोर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। डोंट मूव वर्स टू कि आज हमने यूट्यूब के इस चैनल पढ़ लिया, उस चैनल से पढ़ लिया, ये ट्यूटोरियल है में लटक गए कि आज इसका ट्यूटोरियल देख के प्रोजेक्ट बनाया उसका। कवर द बेसिक्स इन 4-5 months एंड बिल्ड अ मेजर प्रोजेक्ट आफ्टर लर्निंग। सो यही आई गेस बेस्ट रोड मैप होगा इसके लिए। What are the career opportunities in this? So career opportunities बहुत ज्यादा, कई कहते हैं कि एआई आ गया, सब खत्म हो गया, प्रॉम्प्ट देके सारी वेबसाइट, सारे सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। बट आप जब रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वहां पे सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, एक थिंग वहां पे होता है कि कोड कैसे लिखना है, तो वो तो एआई कर देगा। मेन थिंग होती है कि आपको पता होना चाहिए जो कोड लिख रहा है वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन कर रहा है भी है या नहीं कर रहा। मेरी रिक्वायरमेंट और कुछ है, ChatGPT ने कुछ अलग सा बना दिया, तो सम अप करते करते सबमिशन होते होते कुछ अलग ही प्रोडक्ट बन जाता है, कुछ अलग ही मैस खिचड़ी सी बन जाती है कोड में। तो वो थिंग रहता है। तो यू शुड नो एआई क्या जनरेट करके दे रहा है, आप क्या लिख रहे हो, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके स्पेसिफाई कोड को कैसे डिस्क्राइब करना है, कोड का आर्किटेक्ट कैसे करना है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो हमें उस अकॉर्डिंग कोड लिखना पड़ता है। सो वहाँ पे अभी हमारी ह्यूमंस की नीड है। सो ये थिंग रहती है। अभी जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, सो अब मैं रियलिटी बताता हूँ, अभी भी जो भी इंडस्ट्री में है, तो 80 से 90% कोड जो भी लिखा जाता है एआई से लिखा जाता है, बट स्टिल वी आर रिक्वायर्ड फॉर द डिसीजन थिंग। जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी है, उसको कोड में एग्जीक्यूट करना है, उसका आर्किटेक्चर बनाना है, वो सब चीजें हम देखते हैं। तो दैट्स द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री टुडे, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग टुडे। सो या करियर अपॉर्चुनिटीज अभी हैं, कहीं नहीं गई हैं, एंड आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स ये जॉब जाने वाले। बेसिक लेवल खत्म हो जाएगा, आप बेसिक पे रहोगे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू बी ऑन द दैट थिंग जहाँ पे आप डिसीजंस ले रहे हो, मेजर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट डिसीजन कैसे लेने हैं, वो सब चीजें। ओके, क्या नाम बताया आपने भाई कोर्स का? एंजेला यू का है, वेबसाइट डेवलपमेंट बूट कैंप। मैं सर्च भी कर देता हूँ यहाँ पे। सो एंजेला का है आई गेस, या आप ही देश का भी ले सकते हो, मैंने ट्राई नहीं किया, बट इसमें काफी मतलब लेटेस्ट कंटेंट है। एंजेला का कोर्स कहाँ पे था? यू कैन सर्च एंजेला यू। सो इनका ये वाला कोर्स कर गया। आई गेस मैंने ले रखा है, इसलिए मेरे को शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो ये वाला मैंने ले रखा है कोर्स। सो
इसलिए शो नहीं कर रहा। तो ये वाला कोर्स है एंजेला कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट बूट कैम्प, सो ये ले सकते हो। एंड अगर बेस्ट चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो इसको लेके, वेबसाइट डेवलपमेंट में ही मैंने करियर बनाना है, मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है, सो देन अपने पास आता है उसका कोर्स, क्या नाम था मैं भूल गया, क्या नाम था, यूट्यूबर थे हमारे 100x डेव का, या सो आपने नाम सुना होगा इनका। सो इनका जो कोर्स है वो मतलब टॉप लेवल का कोर्स है जो इनका बूट कैंप चलता है। सो इसमें सारी चीज़ें कवर रहती हैं, वेब 3, AI, वेब डेव, सो इट इज़ द टॉप लेवल थिंग। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस, आपने इसी में करियर बनाना है, यू आर वेरी सीरियस अबाउट, देन ओनली आई विल रिकमेंड कि आप ये कोर्स लो। ये आपका पूरा डेडिकेशन मांगेगा एंड इट इज ऑल्सो कॉस्टलियर साइड, बट स्टार्ट और मोस्ट ऑफ द पर्सन के लिए जो यूडीमी में कोर्स है, दैट इज टोटली इनफ थिंग, यू कैन स्टार्ट विद दैट। एंड मैंने भी स्टार्ट वहीं से किया एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही बहुत कुछ सीख जाओगे, वो थिंग है। Yes, will be more works related to, okay. Which framework I should learn next or React? See, नेक्स्ट सीखने से पहले आपको रिएक्ट सीखना ही पड़ेगा। बिना रिएक्ट सीखे आप नेक्स्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो नेक्स्ट बना वो रिएक्ट के ऊपर बना है, उसमें सारे रिएक्ट के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। सो यू हैव टू लर्न रिएक्ट, और रिएक्ट सीखने से भी पहले आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना और जो नेक्स्ट है वो रिएक्ट के ऊपर बना है। सो फर्स्ट लर्न HTML CSS, बिल्ड सम प्रोजेक्ट, देन JS सीखिए, JS से फिर कुछ इंटरेक्टिव सी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, वेदर फेचिंग एप्लीकेशन, ऐसा कुछ बनाइए। देन आप फ्रेमवर्क सीखिए रिएक्ट, उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाइए। देन फर्दर ऑन जब आपका मास्टरी हो जाए, देन ओनली मूव टू द नेक्स्ट JS पार्ट। ओके सर, प्लीज रिपीट द नेम, कोर्स का नेम वही एंजेला यू का मैंने शो कर दिया। Any other doubts anyone have? Okay, so I have to say something. First of all, hello everyone. My name is Vaibhav Rawat and I am the founder of Fork and Flow. And basically, Fork and Flow is my initiative to create a community of learners and builders. And I must say that today, Mr. Alok, thank you so much for this wonderful workshop. I mean, as an organizer and as an I attend this workshop, and I think it is one of the most informative workshop I have ever attended, and I am blessed to have you as a speaker and as a good friend of mine. So thank you so much for this workshop, and I hope in future we will be doing more this type of workshops, boot camps, and events with Fork and Flow. So thank you so much, and Harshita, now you can conclude. Okay. Wow, such an incredible session. We truly hope today's workshop gave you clarity, confidence, and clear roadmap for your web development journey. Since this was our very first event at Folk and Flow, your presence, energy, and participation means a lot to us. Thank you for the enthusiasm and thoughtful question. Before you leave, we kindly request you to fill out the feedback form. Your certificate of participation will shared once the form is completed. And also, don't forget to share your experience on LinkedIn and tag Folk and Flow. Connect with our speaker for guidance, mentorship, and networking. Thank you once again to our respected speaker and to all of you to join the meeting. Scan the QR code on your screen to stay connected. See you in the next meeting.
वैभव बोलो. हो गया. Yes, event is done. But first we have make sure कि everyone leaves. नाइस भाई, अच्छा था वर्कशॉप. Thank you for the feedback. हम्म. And I request everyone to leave. That our event is completed. Thank you so much for being the part of our first event in Fork and Flow. That माय was प्लेजर भाई. माय that प्लेजर. that was really happy to host you guys. I mean, I was still nervous because it was my first event, but it went really well. So thank you so much. Who And you is guys, huh? who is it भाई? Yeah, who is it? I don't know. ओके बाय. Hmm. Bye bye. We will surely meet another time.